अंजलि, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो, for the first time in my life, I feel like I'm a failure. उसने ये भी कहा कि पश्तून फैमिली से है, लेकिन ये फिर भी शुजासत का भाई ही है साथ में। As a 12-13 year old के मेरे भाई के पीछे कनेड की 100 लड़कियां भाग रही हैं हमारी गाड़ी के पीछे और मैं कह रहा हूँ लेट्स गो यार, ये मेरा भाई है। हाँ, रूमर एक ये भी था कि उसने हमारा एक पिलो चोरी किया था। दिस इज अ रूमर, मुझे नहीं पता। दिस इज अ रूमर। क्यों बोलेगा? ये तो बोल ब्रो, बिकॉज़ इट्स अ फन। Welcome Argentinary to Pacavelian. Salman is again wearing a very nice shirt. Thank you. He's on a roll. Actually, yeah, the role of an actor is to make you feel like you're part of their story, make you feel like emotion. अब पिछले 2 दिन के अंदर मैंने इसकी जितनी क्या नाम है, I saw his catalog of work, ब्रो मैं तो रोने पे आ गया था ब्रो। मैंने कहा यार मेरे बॉय के साथ ये मेरे साथ हो रहा है ब्रो। दिस मैन हैज सेंट मी ऑन अ राइड फॉर द पास्ट 24 आवर्स एंड आई एम श्योर अगर मुझे कर लिया है तो फिर बाकी ज़ारों को कितना इसने कैप्चर किया होगा अपने काम के साथ। एंड ऑल्सो करंटली he is the flag bearer for Toxic Boys in Pakistan. We have the one and only Zarar Khan. Hey toxic motherfuckers. कैसा है bro? Very nice shirt that you wore today. मैं इस पॉडकास्ट पे नहीं आ सकता था without wearing a United or a wait a second, a Ronaldo shirt. Boo यार, अच्छा सलमान is a Liverpool fan. Of course. तो वहाँ से बात को यहाँ पे खत्म करते हैं। Hey bro, कैसा है? How are you doing today? Excited? Yes, dude. I've actually been waiting for this call for a while. Okay, like, yo, okay. why haven't I been here? नहीं bro, मैंने कहा हम थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं तुझे ज़हमत दूंगा इस चीज के लिए। But हाँ तो यार तो अच्छा, since you know like you were about to come, तो मुझे मुस्ती ने एक ही चीज़ सिर्फ mention की थी। Like usually he gives me like a big brief, and right now before the mics, the cameras were on, I told him to like pass me the messages and the notes that and the questions he has. Usually he sends me this a week ago. इसने सिर्फ मुझे एक बात mention की थी, तुझे पता है ना तू outnumbered होगा, एक और मैन्यू फैन आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, I set up a small quiz for the both of you to find out कि who's a bigger, not how big fans you are, who's the bigger fan. So there's some bragging rights, whoever wins. तो shall we क्या नहीं क्या मतलब कुछ ले रहा हूँ मैं कहना 99 की चैंपियंस लीग विनिंग लाइनअप नेम करो। हाँ बताओ। मेन्यू पे क्विज। हाँ मेन्यू पे क्विज है and it's first answer wins. I'm gonna probably ask 11 questions so that there is no ties. And so are you guys ready? हाँ मैं बड़ा सीधा hostile takeover कर रहा हूँ from the start ताकि यार तू एक पाकिस्तान नहीं यार मैं तो यार नहीं I started supporting United properly जब वैन पर्सी आया था, तो मुझे अब इसकी मैं तो इस सीजन में आया था मैन यूनाइटेड फिर तो थोड़ा सा पीछे है मुझसे। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैन्यू 3-4 साल का पर्सी है जी। हाँ नहीं आया था। This is like the last year of Ronaldo, right? This is 2008. Okay, yeah. चल ठीक है ब्रो, क्या है तो किसका करना है like Okay, so I'll ask a question. First, like whoever answers first gets the point. 11 questions in total. I could go way more than that. I want to keep it simple for you guys. 11 that's why ताकि odd number हो ताकि ज़रा पता चल जाए कौन जीता है. And we have bragging rights. पता चल जाएगा for the rest of the podcast who's a bigger Man U fan. I'll start off with the easier ones. And then तो बस खुद ही बस बोल दे अगर जवाब है। अगर जवाब आता है ठीक है सही है। ठीक है। You might even like from my question you don't have to like listen to it all. If you know the answer, if you think you can just like name the answer. लेकिन जो पहले आंसर ठीक देगा gets the point. Ready? So question 1. Manchester United was previously known as ये मुझे बहुत याद है क्योंकि पैस के लिए भी है। नहीं ब्रो, मेरे पास मैं एक दफा बेइज्जत हुआ इस चक्कर में, किसी मेरे मैनचेस्टर के दोस्तों ने ना उन्होंने कहा ऑफ यू आर सच अ बिग मैन यूनाइटेड फैन, व्हाट वाज यूनाइटेड्स ओल्ड नेम, मैंने कहा मैनचेस्टर सेल्टिक। मुझे इतना जलील किया। Why did you think that? I don't know. सुना पता कहीं पे Bro, because ये Celtic जो है ना, it's like it is जिस तरह United और Atletico होता है ना, it's a word जिसको आप like लाहौर Celtic या Celtic दे कराची कर सकते हो, तो it was तो अब खैर
that was a चलो ठीक है, यहाँ okay, पे basically ये हिरा ने पिछले Action. एपिसोड में की थी ना कि you know everything in your life will have an effect on क्या नाम है sometime in your life, ये मुझे उस चीज का retribution मिली है. चलो ठीक हो गया. Question number 2. 2016 is the year Man U broke the record for transfer fee. Pogba. Okay, let's go. अच्छा तुझे क्या पता था मैं पूछने लगा हूँ सवाल? तू बड़ा तूने उसको सवाल दिए हैं? नहीं मैंने नहीं दिए. नहीं माँ कसम, मैं literally अल्लाह की कसम मेरे पास नहीं है. चूज करके दे रहा हूँ. अच्छा ठीक है. So 2 questions down. मुझे लग रहा था मुरीनियो के बारे में पूछने लगे. नहीं कौन आया था ट्रांसफर 2016 record का में? मैंने कहा एक ही हो सकता है. चलो मैं थोड़ा सा जरा वो आ जाता हूँ. लिसांड्रो मार्टिनेज जर्सी नंबर 4 नहीं नहीं, he is 16. 5 8. नो Wait, 5 is Maguire. 18? नो No, 18 is the fuck? यार कल मैच देखा उसका. Is he not 6? He's not 3. इट्स डबल डिजिट 15 No, it's in the teens. It's in the teens, right? 19 नहीं है, 19 नहीं है, 18 भी नहीं है. यार गालियां खाऊंगा मैं अपने सारे बॉयज से. 37 मेनू का है. अच्छा हिंट दे दे कि हॉट एंड गोल्ड कर लेते हैं. चलो ठीक है. या कीप 14 ओके व्हाटएवर. कोल्ड No, he says he's not in the teens. या Is 22 it 20, हॉट अच्छा 24? वेरी हॉट 25 25. गो. क्यों मार्टिनेज ने इतना ऑब्सक्योर नंबर रखा हुआ? 25 मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था. मेरे तो सीधा 16 आया था. हाँ एग्जैक्टली. व्हाट ईयर वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड? 1878. यस. वाओ. अच्छा First guess, bro. First guess. अच्छा अब मैं थोड़ा सा जरा हार्डर उसमें जा रहा हूँ. ठीक है. Okay. जरा पुराने वाले आते रहेंगे. First EPL title, English title. Let's call it English 92. title. पहला तो नहीं था वो. Probably of best. नहीं प्रीमियर लीग. English title. English title. English league title. 1920 something. That's a little hotter than him, but like yeah, okay. 1905 Very hot. 1906 1902. 1907 02. 1909 1910 1908 Yes. 1908. एक दूल्हे बीच में मिस किया. अच्छा मैं 1928 कह रहा था. 1908 था. Okay, one player. मैं तो जीत गया हूँ फिर नहीं. नहीं अभी इजी है. अभी like 5-1 चल रहा है. Easy 11 questions. यार ये अगला मैं जीतूं तो Yeah, मुझे अगला. ये मैं तुझे दे दूंगा. हाँ कर. Who is called the king at Manchester United? कैंटना. मुझे पता था मैंने इसको दिया है. ये मैंने इसको पॉइंट दिया है. दिया है. दिया है. Highest goal scorer for Man U. वेन रूनी. Yup. Tied with. राइन गिग नहीं क्या मतलब टाइड विद He's tied with somebody. एट मैन Tied with Harry Kane. Yeah, ये तो मेरे पास आंसर लिखा भी नहीं आ रहा. No. Bobby Charlton. Harry Kane. हाँ. Yes. लेकिन yeah, he gets the point though, because that was just an added thing. अच्छा जी अब जरा easy आ जाते हैं जरा. True and false. Man U has the most Premier League titles. Yes. Man U was the first ever English club to win the European Yes. Cup. Yeah. Yeah. Okay, there you go. The winner is what? क्या? ये आप लोगों के सामने 60s वाला हम पहला जीते थे. Yeah. The European Cup was won by an English, like the first English team to ever win the European Cup was Man U. That's The Busby the true Babes. and false. Yeah. यार ये तो this was a landslide. This was a landslide. Zara bro, बस come on. तेज बोलता है. और क्या that was the case. और क्या सवाल थे just out of curiosity. हाँ. यार और मेरे बड़े उसके अंदर बड़े वो भी थे आगे पीछे थे. David Beckham was at Manchester 7. United अच्छा, FC नहीं. Reserve. नहीं मुझे लगा 2 to नंबर की बात कर रहा था. 2003. Academy, true and false सब ऐसे तो. I was looking for either a true or false. If he was in the Man U के FC Reserves की academy में था. true, Yeah, of course. Because he's मुझे लगा ये कोई trick Academy, question है. हाँ. 92 boy है. Beckham की documentary देखी है तूने? हाँ bro. बहुत amazing. I think it's one of the best documentaries I've ever watched. Like it's Honestly, बहुत अच्छा है. ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको स्ट्रक्चर बहुत स्मार्ट हैं ये लोग जिस तरह ये अपनी मार्केट करते हैं ना प्रोडक्ट्स. Yes. लाइक तूने वो डिफाइंट वंस देखा है डॉक्टर ड्रे और जिमी आइवीन का. किया. तो ये बड़ा लाइक हमें भी कुछ करना चाहिए या तो जिरमोंडो के लिए या पाकवेलियन के लिए कुछ प्रमोट करने के लिए. इस Bro, तरह the के- firms these guys hire are insane. Exactly, that's the whole point. Yeah. Abhi Mr. Beast, I think, has hired the PR firm that Johnny Depp had during the trial. Beast भी- उसकी भी एक Beast ही है for the controversy lack चल of रही है. better- हाँ? उसकी एक controversy चल रही है. With his other person that has
transitioned into a woman. But that's not the controversy. The controversy is some pedophilia case against him. यार ये जो पेडोफिलिया का बकवासें चल रही है ना आजकल heavy चुतिया Yeah, वैसे I feel like I don't pretty sure ये ग्राफ होगा, लेकिन I feel like YouTube stars कि अगर आप ग्राफ निकालोगे और पीडीफिलिया केसेस निकालोगे तो बहुत ज़्यादा बहुत गिरते हैं। सिमिलर होंगे बिकॉज नाउ ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात नो आई टेल यू है व्हाई बिकॉज आई फील लाइक Boys YouTube star. बिल्कुल भी नहीं स्टार्स का हां यू नो ब्रो खैर ये कॉन्वर्सेशन हम जरा को इसलिए नहीं लाए I'm just gonna यूजुअली क्या होता है कि खैर यूजुअली की तो बात नहीं है ब्रो अब बस I need to tell you कि ब्रो मैं इसको कल रात मैसेज भी किया कि I go through everyone's catalog of work जब आ रहे होते हैं सलमान भी करता है मुझे तो बड़ा like- फिट लगा ब्रो तो लाइक हाँ मैंने that इसको you do your research. Bro, I have to do it. I have to fucking do it. So I messaged him last night. इसका show है Jaffa. Bro, I ran through that in a few hours, bro. I was hooked. Bro, बहुत आला यार. बहुत आला. Like, यार bro, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा यार कि यार तूने अनदलीब के साथ बहुत ज्यादती की है bro. Dude, everywhere I go, मैं अभी देवसाई में था, मुझे वहां पे एक लड़की ने आके कहा आप नहीं मुझे अच्छे लगते। मैंने कहा क्यों? आप मुझे जानती भी नहीं है। उसने कहा Bro, नहीं मैं आपने गोलियां नहीं खाई ना। मैंने कहा ब्रो वो मेरा कैरेक्टर है, मैं बताता वो हूँ मैं तुझे। नहीं हूँ। मैं बताता हूँ तुझे यार तो बेसिकली अच्छा बाय द वे माय मॉम आल्सो हेट्स यू मैंने उनको कहा कि ज़रार आ रहा है मैंने कहा ज़रार कौन मैंने कहा माँ वो ड्रामा है ना जफा जिसमें मोइज जो कहती हैं आई हेट हिम सो मच I love it, bro. हाँ और ब्रो मैंने और I फिर love it. मैं ये कहानी इब्राहिम को बताया था जो मैं अभी तुझे बताता हूँ ना कि लाइक एक्चुअल प्लॉट क्या था सो बेसिकली हिम ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड मोइज एंड देन देयर इज दिस एक्ट्रेस सहर खान शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस Amazing. मुझे आई वाज शॉक्ड हाउ बहुत गुड crazy शी वाज actress. ब्रो हाउ गुड शी इज तो शी इज प्लेइंग हिज मतलब रोमांटिक इसके साथ वो एंगेज हुई होती है शो के अंदर तो एंगेज इन द सेंस कि मतलब इसके ऑपोजिट love it. not like हाँ तो both of them are in college ठीक है both of them are in a relationship दोनों एक दूसरे को I love you शादी की तैयारियां anyways अब्बू जो है उसकी he sees them together on a roof on his roof like अपने घर के अंदर and then he is like कि तुम्हें पढ़ना नहीं है तुम्हारी मैं अब शादी करवा I've दूंगा seen this exact by the way हाँ मैं तुझे बताता हूँ हाँ मैंने सीन देखा नहीं मैं तुझे बताऊंगा you sneak in yeah he's sleeping he wakes Yeah, up and then yes. comes and like yeah I've seen तो it फिर वो कहते हैं मैं तो शादी करा रहा हूँ शादी कराने के चक्कर में वो कह रही है मैं भाग रही हूँ शी लाइक राइट्स अ नोट ही इज आल्सो रनिंग अवे रोक लेता है एक थप्पड़ छप्पड़ भी मारता है उससे एंड देन लाइक उसकी शादी कराने लग जाता है टू दिस ओल्डर गाय अच्छा ब्रो माय हार्ट ब्रोक व्हेन यू वेंट टू हर वेडिंग मेरा लिटरली मुझे नहीं पता था कि तू उसकी शादी में तो जाएगा सीन का वैसे मेरा जो गेटवे था वो ये था कि डू यू नो हाउ टू राइड अ मोटरबाइक Yeah, ओके because you riding a motor you yeah. you come on a I've been bike. riding motorbikes all my बस चलो life. ठीक है ओके क्या नाम है अंदलीब इज गेटिंग मैरिड टू नुमैर दिस अदर ओल्डर गाय ठीक है बिफोर द वेडिंग sorry at the wedding they meet and he's like I can't believe you're getting married I am going to kill myself when I go home she's like no we both will क्या नाम है take sleeping pills and die ठीक है तो he doesn't take the pill ब्रो रुक तो सही शादी होती है सारा होता है मैं शादी पे खड़ा होता हूँ ठीक है शादी होती Looking है at her. she रुखसत हो जाती है वो कमरे में जाती है and then she takes the pills her husband is and she like starts dying her husband is a doctor वो उसे बचा लेता है okay एंड देन शी इज क्राइंग कि आपने मुझे बचा क्यों लिया है मोइज मर गया है उसने भी कर लिया होगा एंड द डैड इज लाइक ओह नो मैंने आई फील सो गिल्टी आई नीड टू एंड देन अंदलीब इज लाइक मैंने उसके घर जाके उसकी अम्मी से यू नो दुख सुख करना है अंदलीब जाती है ब्रो दिस बास्टर्ड इज प्लेइंग क्रिकेट वो आती है मैं शॉट मारता हूँ मेरी ही बॉल उसकी गाड़ी पे लगती है वो रुकते हैं और वो देखते हैं कि ओ ये यहाँ पे खड़ा हुआ है yeah cricket ब्रो मैंने इब्राहिम को बताया इब्राहिम कहते हैं That's insane. और ब्रो मुझे नहीं पता था कि अच्छा तो when this thing went viral ठीक है मुझे नहीं पता था कि like she's dying like उसने ये किया मुझे बस पता था कि वो अस्पताल में थी मुझे लगा कि अच्छा यार वो लड़कियां जिस तरह like होती है ना कि तुम मुझे अस्पताल में मिलनी है तुम क्रिकेट मेरे तो वहमो गुमान में ही नहीं था कि ब्रो तूने उसको इतना बड़ा धोखा दिया level की pen toxicity. on fire ब्रो यार जो भी स्क्रिप्ट राइटर है ना बहुत आला
God, like बहुत आला तो bro अच्छा तो I'm जब gonna मुझे take- ड्रामा ऑफर हुआ था ना, it was this scene that made me want to do it. तूने खुद नहीं कहा मुझे कि सिर्फ यार स्टोरी आपने मुझे कितना स्टोरी बता रहे थे, मैं कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ने कहा कि वो गोली खा लेगी तुम नहीं खाओगे, हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे और फिर ये हाउ दिस इज हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड एंड शी विल फाइंड आउट दैट यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड शी इज गोना बी देयर और फिर तुम लोग का आमना सामना होगा. आई वाज लाइक डूड जस्ट फॉर दिस ड्रामा. How, मतलब how did ये it feel like to play Mrs. Sonian in that drama? yes bro. तू ठीक नहीं कर पाई bro that was an insane अब bro अच्छा we'll get into more like details of this drama but bro तूने अब जो मैंने शुरू में कहा ना कि like you took me on a ride and I was like मुझे अक्सर में like you were wearing I thought it was actually you ठीक है तूने अपनी वो बीवेयर वाली शर्ट भी पहनी हुई थी ब्लू कलर की which I've seen you जो मेरी और डैनी दोनों के पास है. and I was just like नहीं नहीं मेरे बेचारे बॉय को क्या हो रहा है क्यों हो रहा है और like bro I started off like just watching के हाँ skip करता रहूंगा फिर मैं अम्मी अब्बू के भी सीन देख रहा हूँ फिर मैं बाकी सीन भी देख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यार जरा यार कुछ कर ले ब्रो कुछ कर ले खैर ब्रो मेरा बहुत दिल टूटा था but like अच्छा just run me through I this. went from being Pakistan's sweetheart for like 6-7 weeks to becoming enemy number 1. Bro it was Within the space it was, of a it was week. trending I think Number number 1 one. था या number 2 था Yes, number 1. Also, it's insane what Pakistani TV can do for you and how much views it gets. This drama is getting 10 million episode, dude. अभी I think 13 episodes हो गए मुझे हैं and खुद like नहीं था 200 पता। 200 million हो गए हैं I मुझे think खुद total पता नहीं उसके। था कि ये impact होता है ड्रामे. Let's say I've heard, I could be wrong, that TV dramas don't care about TRP anymore and they care more about YouTube analytics now. वो उनको ही पता Is होगा. that something I that wouldn't you know. would agree with? I care more about YouTube? YouTube views Analytics? personally because मुझे at least वहाँ से समझ आ सकती है कि मेरा ड्रामा कितने लोग देख रहे हैं. Okay. तो maybe it's the same for them. Okay. असल में ब्रो TRPs के लिए भी होता क्या है that they have these machines क्या नाम है analog readers on these cable towers तो वो जो है ना बताती है कि इस टाइम पे कौन बंदा क्या क्या देख रहा है at this time तो वो इतने कम लगे हुए हैं कि TRPs की भी जो validity है ना या like how Okay. accurate they are they're not 100% So accurate you कि would ये- agree to the fact that it would YouTube पे be ऊपर तो- more ब्रो वेयर जनरेशन जो उस तरह से समझती है Exactly, yeah. डिजिटल जनरेशन एनालॉग से दूर चले गए पर मुझे अब इस बात से हिला मत ब्रो मुझे पहले बता अच्छा अभी तूने लाइक इस तरह की बात की देवसाई तू गया हुआ था तो अच्छा bro, पहले तो मुझे बता अब we're on the 13th episode at the time of screening but just talk me through when episode 8 या 9 था ना जब ये हुआ था तेरा like just knowing कि like ये होने वाला है like तुझे like butterflies हो रहे थे like I hadn't मैं even told future बनने वाला हूँ मैं मैंने toxic दोस्तों को king भी नहीं बताया हुआ था कि ये होगा. मैंने उनको कहा था तुम लोग क्योंकि वो देख रहे थे क्योंकि उनके मतलब बॉय का पहला बड़ा ड्रामा आया हुआ था तो वो नहीं, but actually like you've had huge dramas before as well. no but this is like the biggest. हाँ, This मतलब- is like pop culture. But basically. this is वाकई exact ठीक अल्फाज इस्तेमाल किए हाँ बट क्या है तो मैंने उनको भी नहीं बताया था मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था तो मुझे ना मेरे अब्बू भी ऐसे अपडेट्स because they're in Murray right now तो वो वहाँ पे गर्मी अवॉइड करने गए हैं सो मेरे अब्बू भी ना मुझे कभी कभी अपडेट्स या मेरी बहन कहती है ओए तुमने गोली नहीं खाई. हम एक्चुअली अपने पेरेंट्स को विजिट करने गए हुए थे और वापसी के रास्ते में थे हम मोटरवे पे थे रुके वी स्टॉप टू गो टू द बाथरूम तो मी एंड माय सिस्टर इन द कार माय ब्रदर्स इन द बाथरूम और उस दिन ये वाली एपिसोड आई थी क्रिकेट वाली कि क्रिकेट खेल रहा है और मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं आई कुडंट वेट टू स्टॉप क्योंकि एपिसोड आ चुकी थी मुझे था कि एडिट्स आ गए होंगे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स आ रहे होंगे तो आई नीड टू सी इट. अब हम रुके हैं हम दोनों गाड़ी में मैंने दस्ती फ़ोन खोला है मैं अपने मेंशंस देख रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है और वो ना एक सीन बस आया है कि वैसे शॉट मार रहा हूँ मेरी बहन ने ऐसे मुझे देखा कहती है तुम क्रिकेट खेल रहे थे जलील इंसान. यार ये इम्पैक्ट है बहन्स की दुम. दोस्त तो मेरे हंस पागल कहते हैं तू क्रिकेट खेल रहा था ये तू करता है. bro and it's funny because like the other day हमें कुछ क्रिकेट के लिए लोग चाहिए थे like खेलने के लिए Yeah, वैसे what a fucking great idea, bro. ये होना चाहिए.
You should just like hop by into like a random ये जो LMS नहीं हो रहे होते pick up I'm alive मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ. That would be so cool by the way. मजे की बात है मेरी जिंदगी मेरे एक्टिंग करियर के दो सबसे बड़ी चीजें रिलेट टू क्रिकेट. वन 12वां खिलाड़ी which was my first ever project and two this moment in this drama which will I think मेरे करियर में probably will be one of the most remembered moments. Bro. क्योंकि वो इतना बड़ा शॉकर था मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी आती. मैं यही कहने लगा था. ना मैं खेलता हूँ ना मुझे वो खास खेलनी आती है. मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैं आज भी फुटबॉल ही खेलता हूँ. It's bro yeah like 12वां खिलाड़ी में ना मुझे डायरेक्टर ने कहा था ज़रार तुम्हारा कैरेक्टर फास्ट बॉलर है. मेरा सवाल यहाँ पे लिखा है. सर नहीं मेरा कैरेक्टर सिर्फ बैटिंग करेगा या वो फील्डिंग करेगा उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. मेरा सवाल भी था कि I went through 12वां खिलाड़ी like this morning. मैं कह रहा था अच्छा खाकान ऑलराउंडर है, शावीर जो है बैट्समैन है, डैनी भी बैट्समैन है, ज़रार क्या कर रहा है? Sohail was a fast bowler but मैंने देखा ही नहीं like dude मुझे आता ही नहीं है. मतलब मैं नहीं कर सकता. मतलब मैंने ट्रेनिंग भी की थोड़ी बहुत ये वो बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं आई कुड लाइक पुल इट ऑफ एंड आई डिडंट वांट बी मेड फन ऑफ. मैं मीम नहीं बनना चाहता था इतना अर्ली ऑन इन माय करियर. तो मैंने कहा सर इसका प्लीज जो पोजीशन है ना प्लीज चेंज करें. मैं फील्डिंग कैच कूच ये वो शॉट मार लूंगा लेकिन बॉलिंग I think it's time अब तू सीख ले बॉलिंग बैटिंग. Yeah. पसंद है क्रिकेट या नहीं मैं देखता भी बहुत कम हूँ. Yeah, it's better than dying though. Given the choice I'll play. Choice, I think. मैं फुटबॉल अभी ये मैं तक लगाऊंगा बेंच. फुटबॉल आई प्ले एवरी वीक. हाँ ब्रो मैं तेरी बड़ी अच्छी इलास्टिको मारता है तू सीजन 2 एपिसोड 2 में. मैं कहता यस कम ऑन तुझे देख बास्केटबॉल के कोर्ट पे. हाँ एग्जैक्टली ब्रो तुझे देख के जो है ना आई हैव दिस विद ज़ावियर एज वेल. मैं लिटरली आई विल टॉक आउट लाउड जब तू कुछ कर रहा होता है ना. लाइक तेरा जो दिल पे दस्तक में भी कैमियो था ना where you have this line के आपके लिए शहजादा आए 7 समुंदर पार. मेरे मुंह से निकला शहजादा शहजादा. It's weird watching yourself on TV, bro. I mean I don't know the feeling. From someone who used to do theater, जिसके कोई playbacks नहीं होते थे, आपके पास एक शॉट होती थी उस चीज को नेल करने के लिए. अब आप टीवी में जाते हो आप एक सीन के 10, 12, 15 टेक भी कभी-कभी कर लेते हो और फिर उसके 6 महीने बाद आप अपने आप को YouTube पे देख रहे हो. तो it's such a weird and because I started acting in theater and that was like I'm starting to now unlearn all of what I had learned and how Is it not how different is it like कितना it's much more relaxed. Really? Because theater में everything's so huge Yeah, and yeah. everything's so Of animated because आपका जो सबसे फ्रंट पे ऑडियंस मेंबर होगा ना वो भी आपसे 20 फुट दूर है. लेकिन ये कैमरा आपके मुंह पे है. आपका सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर 70% स्पेस आपके मुंह ने ली हुई है अगर आपकी क्लोजअप शॉट है और बाकी सिर्फ बैकग्राउंड है. सो एवरी लिटिल थिंग यू डू इज बीइंग कॉट बाय द कैमरा. सो उसकी वजह से इनिशियली आई स्ट्रगल्ड लिटिल बिट बिकॉज मैं अपना वो था कि हे आई एम और फिर आपको टीवी पे हियर आई एम करना पड़ता है. सो इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स एन आर्ट फॉर्म दैट आई एम स्टिल लर्निंग. ऑब्वियसली मैं भी एक एकेडमी प्लेयर हूँ. नहीं ब्रो तुझे पता है तूने क्या किया है तूने मैंने मकेड़ा वाला मैंने मकेड़ा का डेब्यू मार दिया. मकेड़ा ही खेल रहा था. बे मैंने कहा नहीं ब्रो ये तू मकेड़ा से बहुत बेहतर है. तूने पता क्या किया? नहीं देयर हैज टू बी अनदर मकेड़ा के अलावा कोई एनालॉजी होनी चाहिए. मैंने अभी रियलाइज किया कि मैंने कहा गया मैं मकेड़ा नहीं बन सकता. नहीं ब्रो तूने पता क्या किया? तूने रैशफोर्ड का वो किया है लाइक जो उसने आर्सेनल के खिलाफ किया है. आर्सेनल या मिडलैंड के लिए किया है. तो वो तो फिट है ब्रो वो तो फिट है. बट यार अच्छा बातें जो है ना कुछ इधर हो गई है. इसको थोड़ा वापस लाते हैं. अच्छा हाँ तो ब्रो ये you were talking about like how you were approached for this क्या नाम है ड्रामा. तो how does that अभी we've had a couple of actors also on क्या नाम है as guests but मैंने अभी उनसे कभी पूछा नहीं कि how does like a pitch go like if someone approaches you for like a role तो वो किस तरह like how does that conversation go? Do they try to like woo you into it? वो क्या आपको किस तरह समझाते हैं like? Obviously with
with any industry and any job that you're being touted for, everyone's going to try to woo you. Because if they think that you are a good fit for the character, then they're going to obviously sell it to you as well as you can. That might not fit into the philosophy that you have for your career. Because obviously, मुझे at least लगता है कि शुरू में आपको देख के थोड़े बहुत मतलब लिटरली हर चीज़ भी नहीं करनी चाहिए. ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो आपको पहला जो आएगा वो आप करोगे, दूसरा जो आएगा आप वो करोगे. बट आपने उन दोनों के अंदर एक डिसेंट लेवल ऑफ वर्क दे दिया है, देन यू हैव a little bit of a choice with your third. Because if 3 channels have noticed you, or even if 1 channel has noticed you, if they're offering you a role that you're like, man, this might not be great for my career. If you feel like it's too negative of a character, या वो बहुत ही वो ऐसाहॉलिक टाइप कैरेक्टर है जो आप कह रहे हो यार ये नहीं मैं करियर स्टार्ट कर रहा हूँ. I mean, bro, तू काफी ऐसा है. पर तेरा आर्क आ रहा है वापस तेरा. मैं अभी कोई प्रेडिक्शन भी मारूंगा इस. तो वो आपको वो थोड़ा सा ऑब्वियसली करते हैं. बट हाउ इट गोज इज कि they'll text you कि I'm this from this production house या this channel, and then you get on a call. And then basically all you have to do is ask them कि अच्छा क्या ड्रामा है, who's the director, who's the writer, आपके co-actors कौन होंगे, इसके leads कौन हैं, क्या टाइम स्लॉट है इस ड्रामे का, 6 बजे का ड्रामा है, 7 बजे का है, 8 बजे का है, 9 बजे का है. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वो भी आपके That also matters कि किस टाइम पे शो हो रहा है. ड्रामा किसी टाइम स्लॉट का भी हिट हो सकता है, वो तो कोई वो नहीं है. बट ऑब्वियसली द चैनल्स विल प्लेस देयर बिगेस्ट ड्रामास इन प्राइम टाइम, राइट? So Prime the time 8 is- p.m., 8 p.m., 9 p.m. will be their best dramas. Okay, so if it's like a 6 p.m. drama as opposed to an 8 6 p.m. I think शायद होता ही नहीं है, 7, 8, 9 होता है शायद. Okay, so 7 or 8 के बीच में like there's a difference. The 8 one has a little more appeal, right? Some actors might not want to do a 7 p.m. drama. Oh really? Okay, let's go. If it's a senior actor, they might Yeah. want to do a prime time drama because आपने audience को भी देखना है ना. हम तो Audience यार का में फर्क record होती कर है. रहे हैं. हम तो यार Prime time. पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. So time slots भी लोगों के लिए matter करते हैं. I don't know if actors talk about this or not, but I'm too new to know what to say and not to say. But okay. but obviously but prime you're not- time is prime time. Alright. So if you're on a prime time drama, then you're obviously you're going to be more excited. There's more chances of it being a drama that has a higher budget, that has bigger actors. So at least in the beginning of your career, जिस तरह मेरे लिए इस ड्रामे के अंदर था कि I'm not the lead role, I'm not a title character, but I knew कि look कि एक इसकी राइटर अच्छी है, she's known. हमारे What's her डायरेक्टर name? सुमेरा फजल I think. सुमेरा फजल. बहुत अच्छा किया. हाँ, वो गन्ना वाला जो है ना. वही वाला. और हमारे डायरेक्टर दानिश नवाज, obviously very talented and been in the industry for a long time as an actor, a producer, a director. So for me, there were 3 things that made me want to do it. This scene, the cricket scene, Danish Nawaz, and the co-actors that I was going to work with. Because I knew कि मावरा हुसैन है इसके अंदर, सहर खान है इसके अंदर, उस्मान मुख्तार है इसके अंदर. I was like, मतलब अगर मुझे इनके साथ सिर्फ काम करने को मिले ना, I'm gonna learn so much that I'm not gonna learn with maybe working with actors who are as new as I am. Because here's the thing that happened with College Gate. Everyone was new. Everyone was new. Everyone was new. It was fun. It was great. It was an amazing time. But I feel like जो मैंने 30-40 दिन इस सेट पे मैंने सीखा है वो मैं कभी कॉलेज गेट पे नहीं सीख सकता था because I'm doing a scene with Mavra Hussain. One scene I did with her, I learned something from her about her timing that I was like, oh, this is something that I should add into my repertoire. So I did a scene with Usman Mukhtar. I learned something. I did so many scenes with Seher, and she taught me a lot. Because आपको इतनी ईगो नहीं आपकी होनी चाहिए कि आप शुरू में आके कहो कि यार मैं फिट हूँ. आपने सीखना है. मुझे पता है अगले 2 साल, अगले 6 से 10 प्रोजेक्ट जो है, मैंने बस लोगों को देखना है और मैंने देखना है कि ये क्या अच्छा करता है. अब वो बेशक खाकान हो या वो सहर हो या वो उस्मान मुख्तार हो या कोई भी हो, मैंने सिर्फ लोगों को देखना है कि इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं. अगर उनकी क्वालिटीज़ मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ तो वेल एंड गुड. नहीं तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, दैट्स फाइन.
But if I see something that's good, I need to copy it. I need to bring it into myself, take it apart, and make it a part of myself and my acting skills. So उस तरीके से मतलब इन लोगों के साथ काम करना बहुत never पड़ता है. stop learning, TBH. But have you now permanently shifted to Karachi? No, not yet. Plans on? I think I'll just go there for work. All right. अब तो काफी इस्लामाबाद के अंदर भी shift हो ये गए. भी मेरा ड्रामा इस्लामाबाद में शूट हुआ. Yeah, okay. So I'm hoping कि I get maybe more Islamabad projects. I'm Karachi मुझे इतना मतलब I don't really enjoy it that much. Really? Why? Yeah. Hot take. पता नहीं यार. I just don't vibe with Karachi. Mel, क्या we खाना love you बहुत अच्छा है. Karachi. पता नहीं maybe it's just because my entire life is here. Okay. और वहाँ पे I have 2-3 friends. मतलब मैं इतना ज़्यादा उस तरीके से नेटवर्किंग करने वाला भी नहीं हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ. मैं वही खाकान तैमूरी मामिया के साथ फिरता रहता हूँ. तो आई फील लाइक आई एंजॉय इट हियर. जब काम है हाँ ऑब्वियसली जाना ही है. मतलब यू कांट डू एनीथिंग No, I अबाउट इट. know that you make like food content as well. Yes, but yeah, like, I find isn't it hard to make content there also. वहाँ पे मुझे फिर अपना एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा. So But as a food blogger, a part of you being a Yes. food blogger, let's frame myself right. that's my thing. Yeah, Karachi food is way better than Lahore, right? Karachi food is hands down way better. than Yeah. that. वो तो कोई argument ही नहीं है. ठीक है. Karachi food is the best food in Pakistan. What's the apart best? from Peshawar food because Okay. Peshawar food is bomb. Yeah, it's too clean. Yeah. Yeah. No, it is. असल में like yeah, I didn't have any. side Double food. entendre. Yeah, बिल्कुल भी नहीं. Like हाँ साफ खाना है वहाँ का. Top 3 restaurants, Karachi. Karachi, I really like Test Kitchen. Okay. I think it's The too bakery. small. It's too small, but their things are really nice. And I really like the environment where it's like सारे ये chefs खड़े हुए हैं आपके सामने, breads बन रही हैं, desserts Yeah, बन but रही हैं. like वो इस टेबल से कम बैठ रही जगह है वहाँ हाँ, पे. Like true, 100%. Yeah. But no, hands down, yeah, it's really nice. Evergreen. Okay. I've never been. Evergreen is like this healthy food वाली जगह. और कौन सा मुझे पसंद है? I went to this one other place, Court Roti, I think उसका नाम. वो बहुत अच्छा कोट रोटी. उसका खाना भी मुझे बहुत फिट लगा था. बहुत बकवास लगा था. That's the French embassy thing, right? हाँ. Yeah. तुझे क्यों? अच्छा. Maybe on तेरा हर the- वक्त कोई हॉट टेक होता है ना. यार बीच पे. बहुत ही वो था लाइक जैसा हमारी फ्रेंच एम्बेसी के अंदर आई थिंक बस वो है एक लाइक प्ले वाली लाइक थिएटर And Cafe Flow, I think वो काफी. Flow is there. वो तो वहाँ से लाइक इलांतो टाइप है ना Yeah. एवरग्रीन नहीं, इलांतो से- आई मीन I don't want to like slander Lanto, but I like, think वो मेरी. यार मेरे लिए तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट. चल खत्म बस let's leave. One and only. मैं सालों से, मैं एक्चुअली बचपन से कह रहा हूँ कि आपको अगर खाना खाना है तो आप जिरोमोंडो जाओ. द ग्लोब ट्रॉटर उफ मुझे रोना आ जाएगा ब्रो. इतनी तारीफें हो रही. इसकी एक पता है ना, इसको मैं सही पेट्रन ऑफ ब्रांड एम्बेसडर हूँ. आज जिरोमोंडो कहता हूँ. बेसिकली मैं अभी उठा था सुबह और मुझे ज़रार की लाइक आई थिंक इंस्टाग्राम पे वो जो होता है ना वीडियो वो आई. मैंने कहा अच्छा दिस शुड बी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मैंने खोला और ज़रार जो है वो ओल्ड लाहौर के अंदर है और वीडियो बना रहा होता है. ये देखो मैं कहाँ हूँ यार, ओल्ड लाहौर के अंदर, और ये देख. और नीचे जिरोमोंडो का जो है ना वो बैग पड़ा हुआ है कि देख ब्रो ओल्ड लाहौर के. बस ब्रो बस वहाँ पे पहुँच गया. मैं खाया होगा. ओह अच्छा लाइक उस तरह I was on set, तो मे बी ऑन सेट किसी ने मंगवाया. मॉडल Oh, ने nice. किसी ने मंगवाया था. लेट्स गो खैर ब्रो लेट्स मैं कॉलेज गेट की तूने बात की थी तो कॉलेज गेट एक तो इट टुक अ व्हाइल फॉर इट टू ड्रॉप. Took 2 years to drop. 2 years to drop. तो ये जो एंटिसिपेशन थी ये लाइक did that deter, in your opinion, did that deter college gate या did it like उस पे कोई उसका For असर? myself? No, just generally college gate in general. I think I don't think it deterred. I think College Gate had a really big impact on the Pakistani drama scope space. It was something quite. उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी. खैर let's have your opinion on I that. think if you just look at the first episode on YouTube, I think that episode has like 14 million views. For a drama that has completely new actors that no one has ever seen before, that is from a channel that has started 2 weeks before it launched, I think that's a huge impact because that's Jaffa numbers. And That- Jaffa is Hum TV. Hum TV is like
you know one of the biggest channels in Pakistan. तो आई फील लाइक उसका इम्पैक्ट आज तक आई थिंक हम सबको फील होता है. मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जितने मुझे आज तक जफा के फैंस आके मिलते हैं ना, मुझे उतने ही कॉलेज गेट के कॉन्स्टेंटली 2 सालों से मिल रहे हैं. That can't be true. That can't be true, bro. जफा को अभी निकले हुए क्या महीना हुआ है? नहीं महीना नहीं. Every week एक आता है. हाँ, तो तो 2 महीने हो गए. 2-2.5 महीने हो गए होंगे. नहीं ब्रो, इतना नहीं. जफा ब्रो बहुत बहुत बड़ा ड्रामा है, बट उसका जो इम्पैक्ट था ना रिमेम्बरेंस वाइज कॉलेज गेट की, वो बहुत डिफरेंट थी. बिकॉज कितने डेकेड्स हो गए थे कि Something like कॉलेज that, हाँ. स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में कोई ड्रामा ही नहीं आया हुआ था. True that. मेरा भी यही point था. It was too fresh. It was I- a little too fresh, I would say. हाँ, एक बीच में कोई वो नहीं था आपका yeah. एक सेटिंग पॉइंट नहीं था जहाँ पे ठीक है कॉलेज ड्रामे और आए और फिर एक काफी प्रोग्रेसिव सा कॉलेज ड्रामा आ गया. सो देयर वर हेटर्स आल्सो एंड पीपल हु डिडंट अप्रिशिएट दैट इट वाज दैट प्रोग्रेसिव. बट It was आई very हैड लाइक I have like old people, like people in their 40s, 50s who come up to me and be like, oh, तुम्हारा वो ड्रामा था कॉलेज गेट बड़ा अच्छा था, हम देखते थे, हमें अपने कॉलेज की याद आती थी. तो आई थिंक उस हिसाब से कॉलेज गेट वाज रियली लाइक a big thing in terms of like reminding people of what it's like to be in college. और हमारे लिए as actors भी हमारे लिए वो था, because it on set it felt like you were back in you know LGS or HSN or LSE or whatever. तो आई फील लाइक उस तरीके से उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा अरसा चलेगा. लॉन्गेविटी उस ड्रामे की बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज आई डोंट नो अगर और भी बनते हैं कि नहीं. एक ऐदे वफा था और एक ये है. Where was it shot? इट वाज शॉट इन कराची एंड मरी. नहीं, मरी में like किधर? मरी में माल रोड के ऊपर 1-2 होटल्स हैं जहाँ पे वो कॉलेजेस बनाए हुए थे. हाँ, okay. कॉलेज बनाया हुआ था हमने, और वहाँ बेसिकली हम रहते भी वहाँ पे थे उसी होटल में. उठते थे 9 बजे, नीचे आते थे, नाश्ता होता था उसी जगह पे, नाश्ता क्लियर आउट होके मेकअप होता था वहाँ पे ही, मेकअप क्लियर आउट होके हमारी क्लासरूम बनती थी और हमारे सीन्स होते थे और फिर आउटडोर सीन्स. यार बिकॉज मुझे 1-2 याद है, मैंने 1-2 सीन्स देखे हुए उसके, मुझे वो बहुत ज्यादा लॉरेंस कॉलेज लग रहा था. लॉरेंस कॉलेज it was close to same area. Okay, but लॉरेंस कॉलेज में like zero shoot? Zero. Oh really? लॉरेंस कॉलेज. It But was like, all those bro, 2 set hotels. designers को जाते हैं यार फिर थोड़ा बहुत, like मैं क्योंकि I've been to लॉरेंस कॉलेज और मैं बड़ा वो हुआ था देखे, मैं कहा यार ये तो लॉरेंस कॉलेज है यार. मैं तो फुल कॉन्फिडेंट था, मैं कहा ये लॉरेंस कॉलेज है, कितनी ने अच्छी जगह. Never give in, never never give in हो गया. अच्छा ब्रो, तो अभी ये कॉलेज गेट की तू क्या था, एंड यू मेंशन प्रोग्रेसिव. तो वन ऑफ द थिंग्स जो आई थिंक उस टाइम पे भी इट वाज, खैर इस पे काफी लाइक डिस्कोर्स हुआ था, लाइक व्हेन मामिया वाज लाइक टॉकिंग टू हर डैड अबाउट लाइक, और आई थिंक जफा और लाइक इसकी भी थोड़े पैराबल्स जो हैं बन सकते जफा हैं. में भी थोड़ी प्रोग्रेसिवनेस को. हाँ, like his dad, her dad, prior to seeing you on like on the roof, Yeah. काफी progressive type बातें Yes. कर रहे होते हैं, and then Mamia's dad also like gives her a lot of like, हाँ, उसके पेरेंट्स काफी चिल होते हैं. हाँ, he says, Mamia basically asks her dad के like boyfriend होने के नुकसान और फवायद. तो her dad gives a very like रीजनेबल से जवाब देते हैं कि इफ यू डू इट तो तुम्हारी क्या नाम है पढ़ाई, क्या नाम है इफेक्ट होगी. हाँ, इफेक्ट होगी. एंड इफ यू डोंट फोकस, क्या था यार दूसरी लाइन उन्होंने जो कही थी, either way उन्होंने कहा कि Give a it's- progressive answer, हाँ, basically. he said कि Alright. basically right now is not the right time. Okay. जो मैंने कहा, and then I was like, I actually thought to myself, जफा भी जब मैं देखा, मैंने कहा यार वैसे वाकई यार ये जो लड़के जब इस एज पे होते हैं ना, ये सही लोग नहीं ये होते. सही लोग नहीं होते ब्रो. लाइक लड़कियों को जो है ना, लड़कों को जो है ना, Just think back हाँ, to just 2013 मैं तुझे and actually- you'll have an answer. लड़कियों को जो है ना, क्या नाम है, अजीब लड़कियों से भी दूर रहना चाहिए, और बस सारे इन लड़कों से भी दूर. ये मैं बहुत लाइक रिग्रेसिव बात कर रहा हूँ, बट लाइक बिल्कुल भी नहीं भाई. मैं तुझे बताता हूँ. totally agree with that. नहीं, क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आई थी जो मैं अभी तुझे बोल रहा था, लाइन 4 ना पड़ी ना मैंने नहीं पड़ी. पढ़ी, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी. तो हुआ तो यार बेसिकली इस एज पे जो है ना लड़के, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स. उनको मतलब अपनी भी मसलों के थ्रू जा रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आता Hormones. किस तरह गेज करना होता है दूसरे जेंडर को. तो ब्रो एक दफा मुझे इसी बात से याद आई थी कि हाँ ये ठीक कह रहे थे, हमारा एक जानने वाला है, राइट आफ्टर राइट आफ्टर स्कूल यूनी में गया,
यूने में भाई को कोई पसंद आ गई, ठीक है, इन यूनी, ठीक है, लाइक नहीं पाकिस्तान यूनी में, ठीक है, ओके, ठीक है, तो उसने अच्छा ये दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ पे पसंद आ गई है कोई, ओके, लाइक मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ ठीक है, कि ओके, ठीक है, ओके। तो उसको बंदी पसंद आ गई, ठीक है, वो कहता है यार मुझे तो प्यार है इससे, मुझे ये है, मुझे वो है, ठीक है, मैं तो इसी से ही शादी करनी है, ये वो, तो उसने कहा कि मैं एक दिन लड़की से जाके बात कर लेता हूँ। अच्छा अभी उससे बात नहीं हुई नहीं, थी? लाइक हेलो हाय टाइप थी, अच्छा। पर लाइक अच्छा यार यार ये वाले बॉयज जो थे ना जिन जो Nice. विदाउट रिलेशनशिप कहते थे मैंने शादी करनी है, ब्रो कहते तो फिर तो जाता है उसके पास, ठीक है, एंड ही इज लाइक यार मेरी बात सुनो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, ठीक है, और लाइक इस तरह अपना लव उसको, ही इज लाइक प्रोफेसिंग हिज लव फॉर हर, और वो एक लाइन रट के गया था कि ये लाइन मैं बोलूंगा, और वो पहले जब अपना पूरा प्यार उसे कह दिया, कहता है I just want to leave you on this line. And the last thing that I want to say is that I will never be the reason that you have to fix your eye makeup, but I will be the reason that you have to fix your lipstick. ब्रो ये कैसी पिकअप लाइन है? वो नाम लिखा हुआ है मैंने। हाँ, गुड वन, अच्छा, कमाल ब्रो, डिड इट वर्क? Obviously it didn't, bro. यार pretty sure, Bro यार। अगर वो सिर्फ जाके ये कहता तो शायद ही चल जाता, अगर वो और ये कुछ तूने ना क्यों कहता। कहा? Bro क्या क्या मिले तुझे? नहीं यार, बहुत बड़ा क्यूट बंदा है यार, पहली बार आई थिंक मैनचेस्टर था या पता नहीं, Let's just stop talking. I think उसके लिए बड़ी रोमांटिक लाइन थी। No, he's a huge fan of the guy behind your shirt. तो मुझे अभी तक याद है इसका एक स्टेटस नहीं भूलता, मतलब ये यार तू क्यों कर रहा है? बस कर दे। निकाल दी यार, कोई बात नहीं, ये या तो मैड्रिड में था या मैनचेस्टर में था, anyway he was somewhere where Ronaldo was in the same city, so मुझे अभी तक नहीं भूलता वो दिन, उसने अपना फेसबुक वाला सामान था, उसने स्टेटस लगाया, I am breathing the same air as Ronaldo. इसमें क्या बात है? ये तो मैं भी करूंगा, ये तो मैं भी करूंगा। समझे? Have you watched Ronaldo play? हाँ, once मैं मैड्रिड ही गया था एक्चुअली, और मैं देखा था डिएगो एल्वेज नहीं, डेपोर्टिवो एल्वेज के खिलाफ मैच था, एंड खैर रोनाल्डो साहब ने तो गोल नहीं मारा था, बट बेल ने नहीं, रोनाल्डो हिट द क्रॉस बार, और आई थिंक बेंजेमा, बेल और नाचो फर्नांडेज ने What about you? Have you गोल seen it? देखा था। Really? I've not seen a football उम्रा match हो जाए live. यार फिर। मैं यही अभी कहने लगा था कि मेरा प्लान है कि नवंबर दिसंबर में जाऊं, उम्रा करूं, और इसने- फिर रियाद जाके जरा रोनाल्डो का एक, और आई थिंक मैं 2 मैचेस देखूंगा, क्योंकि एक में तो वो गोल मार ही देगा। Yeah, good one. Yeah, ठीक है। रियाल में जाके, रियाद में जाके। अच्छा, मैंने भी कहा पता नहीं ये क्या तू बात कर रहे हैं। बट हाँ, भी मैच मैंने देखना है यार मैंने, पूछी हुई थी। बस बहुत हो गया। बहुत मैंने बड़ा पाकिस्तान के 2 मैचेस देख लिए हैं, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के। कौन से देखा था? मैंने देखा था जो हम जीते थे, कोलंबिया वाला? कोलंबिया वाला। कोलंबिया नहीं क्या? था? कोलंबिया जॉर्डन? था। नहीं, जॉर्डन भी हाँ, नहीं था। कोलंबिया मैंने क्यों बोल दिया, मुझे वो हो रहा है। नहीं, सऊदी, अफ्रीकन मैं साउथ अमेरिकन कंट्री सोच रहा हूँ, साउथ अमेरिकन नहीं थी। हाँ, कोलंबो, क्या- that's a city. यार समवन गूगल इट, ये इस तरह मैं भी गया था उस मैच पे। हाँ, थे? हाँ, हम Bro, जीते थे। क्या moment थी यार। मोमेंट था ब्रो, मोमेंट था। गोल ब्रो। मैं रिजा को लगा, I took my wife with me, मैं फुल छुट्टी ले वो जब मामिया के लिए आए थे वापस। Yeah, that day, I drove directly from Islamabad to this podcast. तब जब हमने गोल मारा था ना, मैं बस सोचा था कि यार ये मैं जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे होऊंगा, तो जब वहां पे कोई गोल मारेगा तो मैं क्या, Crazy, खैर वो, yeah, लेकिन yeah, yeah. क्योंकि पाकिस्तान की पहली हिस्ट्री की विन थी, वो Yeah. भी एक बहुत ह्यूज मोमेंट थी। और FIFA qualifier. insane. थे कैम्बोडिया। Cambodia. ये तूने तभी किया जब मैंने खोल लिया। Cambodia, yeah. खैर ब्रो, चल, आई एम गोना, मैं उसके बाद बाय द वे पूरी टीम को मिला था, because they were staying at Rumi, the hotel in Islamabad. अच्छा, And I went to like eat there, वो जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो गोश्त वाला हाँ, रेस्टोरेंट है, yeah, क्या नाम है उसका? Carnivore? कार्निवोर। Yeah, I went there to eat.
went into the bathroom, me and Umar Mukhtar, मैं बाथरूम कर रहा हूँ, एकदम से मुझे बाहर से आवाज आनी शुरू होती है, पूरी टीम अंदर आई है, मैं बस मैंने यूरिनल उस में दफा खड़ा रहना हुआ था रूमी में, फिर I stayed somewhere else. I Ah, think okay. one No, they hour. were staying there. I met like Otis Khan. He didn't play that match, but he was Yeah. there. उस वो वक्त तब वो उसका हो रहा था allowed नहीं था कि उसको दादा खेलना, पता नहीं इधर दादा हुआ है होते या हैं। इधर पैदा हुआ है. यार पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान फुटबॉल टीम और उसकी फेडरेशन जो है ना वो इतनी एंटरटेनिंग है कि आप यूनाइटेड को भूल जाओगे कि भाई इधर इतना ओटिस खान का ये सीन है, उसका दादा लाहौर में पैदा हुआ है, लेकिन प्री 1947 पैदा हुआ है, तो उसके Otis Khan is a Pakistani football player. an amazing one. He will be on the Yes. podcast soon, inshallah. Inshallah. And, Really? yeah, ओ, hopefully. बहुत आला है मतलब उस तरह मुरीनियो ने भी आना है, पर like ब्रेक में भी आना है. लेकिन उसका ये मसला हुआ था, उसके दादा 1947 प्री 1947 लाहौर बॉर्न है, तो बट वो उस वक्त लाहौर इंडिया था, तो ही couldn't like पाकिस्तान PFF couldn't like show to FIFA that नहीं वो अब पाकिस्तान है वो है और वो अब यहाँ का बंदा खेल सकता है, तब तक उसके ये नहीं हुए थे, तो he was there, he practiced with the team but he didn't play, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा यार. मुझे वो नाबी जो नहीं हमारा वेरी गुड प्लेयर वेरी गुड प्लेयर, नंबर 10 आई थिंक हमारा वो है very good, He's very very good. he runs the show. Yeah, he it's does. just that it's really hard for our team to compete with the We opposition. need a good striker by the way. Yeah. हमारे वो घर गोल वो बहुत लकी था. ईसा सुलेमान भी जो है ना वो भी पीछे कर लेता है, लेकिन स्ट्राइकर चाहिए. स्ट्राइकर चाहिए. स्ट्राइकर डिफेंडर्स बेचारे वो दो लंबे हैं हमारे, वो बेचारे। बस हेडर मार मार के क्लियरेंसेस कर करके, बट आपकी मिडफील्ड में कोई होता नहीं है. जो लास्ट मैच था अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, ओटिस खान बेचारा उनके हाफ में नहीं मुझे नजर आया. वो बॉक्स के सामने उसको बॉल मिलती थी तो ऐसे लगता था कि प्राइम मेसी आ गया, वो काट रहा है लोगों को. Did you go to the Saudi Arabia match? Yeah. Oh, I couldn't go then. लेकिन bro, what a वो वैसे यार. Like, वो मैं देखने गया था, मैंने कहा यार मैंचीनी खड़ा होगा सामने, मैं आई हैव टू गो ब्रो. bro बड़ा लेकिन हासिल में सीन तो था. वो भी यार देखो क्या I think अजीब इस बात वर्ल्ड थी. कप की हाईलाइट थी जब सऊदी ने अर्जेंटीना को हराया था. Yeah. That was Saudi has really won football. Actual जो है ना वो फुटबॉल सऊदी जीती है. रोनाल्डो चला गया उनके पास, मेसी को हरा दिया उन्होंने, और कौन कौन गया है उनके पास. खैर that's a different conversation. मिट्रोविच गया है यार, अपनी बेचारा प्राइम में अपनी चला गया. साडियो माने. मिट्रोविच भी गया है. मिट्रोविच इज इन द टीम अल हिलाल दैट कीप्स Al-Hilal बीटिंग में। अल नसर ब्रो. कल रात को भी उन्होंने अल नसर को हरा दिया. देखते हैं क्या ब्रो मैं रोनाल्डो बाथरूम भी जाए ना तो मैं उसकी उसकी न्यूज़ फॉलो कर लूंगा. मैं पागल हूँ ब्रो. या ब्रो जिस दिन कोई सी जीत जाते हैं. रोनाल्डो के बारे में कोई सवाल ही नहीं था. ब्रो जिस दिन रोनाल्डो रिटायर करेगा ना, मैं बहुत तुझे अपनी रोते हुए वीडियो भेजूंगा. ब्रो मैं तुझे बताता मैं अभी से सोचते हुए इमोशनल हो जाता हूँ कि क्या क्या लाइफ होगी जब आप हूँ. इसकी शादी थी, ठीक है, इसकी शादी थी, और क्या नाम है, बड़े खुश हम आ रहे हैं. आई थिंक बारात के बाद था या मेहंदी के बाद था. Okay. वो बारात खैर रुखसत हो चुकी थी, क्या नाम है, भाभी हमारी रिजा, एंड इसको क्या नाम है, ही लेफ्ट हिज बैग एट माइन. ठीक है, मैं इसको बैग छोड़ने गया इसके घर, और वहां पे लगा हुआ पोर्चुगल वर्सेस मोरक्को वर्ल्ड कप के अंदर, और पूरा दिन इतना खुश, और आगे देखा हुआ स्कोर 1-0, और मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ यार रोनाल्डो कम ऑन यार, क्रिस्टियानो कम ऑन मैन. तो मेरे लिए वो बड़ा सब्स्टिट्यूट किया था क्या 80th मिनट पे या किस तब उसको नो लेके आए? वर्ल्ड कप ये जो मेसी जीता था जिसमें रोनाल्डो रो के निकला था मोरक्को से. हाँ वो सब्स्टिट्यूट आया था एंड में. दे स्टार्टेड गोंसालो रामोस because he had scored a hat trick against हाँ ब्रो, पर रोनाल्डो के पास ये वो वाले चांस था. मैचेस के एंड के अंदर बड़ा सिनेमैटिक क्राइंग सीन था उसका रोनाल्डो का, जिसके चैनल के अंदर लाइक ब्रो मैं बहुत रोया. मैं उस दिन भी रोया था. ब्रो चलो वैसे ही बता दूं. मैं रोया पता है कब था, जब रोनाल्डो वापस आया था, खुशी के आंसू निकले. वो तो ब्रो I was not मुझे ready for पूरी that. पीटर ड्रूरी की याद है. That's स्पीच जो है, रीड इन रेड रिस्टोर टू दिस ग्रेट गैलरी ऑफ द गेम, अ वॉकिंग वर्क ऑफ आर्ट. ओह यार लेकिन चलो आप लोगों का तभी तो खेल रहा है, लेकिन मैं तब बता देता हूँ ये बंदा उस चीज़ का गवाह है कि आई एम अ लिवरपूल फैन एंड आई वाज अ ह्यूज स्टीवन जेरार्ड फैन बॉय. और मैं मजाक नहीं कर रहा, स्टीवन जेरार्ड जिस दिन रिटायर किया था, इससे पूछ लो जिस दिन बुखार चढ़ गया था, लाइक मैं लिटरली लाइक या इट गेट्स टू यू. तो जब पता नहीं, डोंट नो अबाउट यू गाइस, जब रूनी पे मुझे थोड़ा हुआ था मुझे वैन पर्सी पे हुआ था. क्योंकि रूनी मेरा फेवरेट यूनाइटेड प्लेयर था. डिस्पाइट मतलब रोनाल्डो मेरा वैसे ही फेवरेट प्लेयर है, बट आई हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रूनी. मैंने जब फुटबॉल देखना स्टार्ट की थी तो आई वाज जस्ट वाचिंग डिफरेंट मैचेस ऑफ डिफरेंट क्लब्स,
और एक मैच था यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी इन 2008 आई थिंक, और वो बस उसको, वो इंजर्ड था रूनी, उसको टैकल पड़ा, वो उठा, उसकी मतलब को फक हो गया था वो कम्प्लीटली, यहाँ से खून निकल गया था। रैन दी इंटायर हाफ उनकी साइड का चेल्सी का, स्कोर्ड, गॉट सब्स्टिट्यूटेड, और मैंने कहा ब्रो ये क्या प्लेयर है यार, ये इसका फैन हूं मैं। अच्छा, तो ये फुटबॉल की बहुत लंबी कहानी वापस आता है और मुझे डर है कि ये फिर से भी होगा, पर लेट मी जस्ट ब्रेक इट बैक फॉर द अवाम एंड masses. Bro, अच्छा, तो कॉलेज गेट के अंदर you've talked about working with your friends like खाकान के साथ, तैमूर के साथ, but you were romantically paired alongside Mamia for a short time of शिश, वो कंफ्यूजन थी, वो अगर उसका सेकंड थर्ड सीजन होता तो वहां पे कुछ बिल्ड हो सकता था। तो what is that like? How is like, I'm assuming it's awkward या क्या? I just talk It's actually more comfortable. Really? Yeah. अच्छा. जिस तरह, because Mamia was already a friend, so I can like be myself and like act more openly around her, instead of के जब मैंने किसी और एक्ट्रेस के साथ सीन्स किए हैं तो the first couple of scenes, because obviously I'm not a pro yet, तो वो एक awkwardness natural शुरू में आती है, आहिस्ता आहिस्ता as I progress as an actor everything will become professional, but अभी तो nerves भी होती हैं, आप excited भी होते होगे, आप project कर रहे हो, आप TV पे आओगे, ये वो वगैरह। When's the most nervous you've been on set? कोई तेरे दिमाग में आता है time? First day of Jaffa. First day of Jaffa, not बारवां खिलाड़ी, not क्या नाम है? Bro, because Jaffa, I knew the scale of what this drama could be, because I had read the script. जिस तरह तूने ड्रामा देखा है ना, मैंने उस दिन उस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि मैं एक दिन बस मैंने पढ़ना शुरू की और फिर मैं पढ़ता रहा। I was like, bro, this is a great script. उसके अंदर बहुत ज़्यादा twists and turns थे। तो first मज़ीद भी आने हैं? हाँ, बॉयज ड्रामे के अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो क्या नाम है, मैं फर्स्ट डे जब गया था ब्रो, मेरी फटी हुई थी कंप्लीट, मतलब ब्लास्ट क्योंकि अभी तक मैंने मोस्टली अपने दोस्तों के साथ काम किया था। 12वां खिलाड़ी हो गया, कॉलेज गेट हो गया, दिल पे दस्तक पे भी खाकान और तैमूरी थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैं एक सेट पे जा रहा था जहाँ पे देयर वाज गोना बी नो वन दैट आई न्यू। I was all alone, and this was for me, this was the beginning of my acting career, because this was now me doing things by myself. I didn't have any help. I didn't know the director. I didn't know the production. I didn't know anyone. I didn't know an actor. और मेरे पे pressure ये था कि I'm working alongside people who are highly successful for a long time. I cannot be like नर्वस गोइंग इनटू दिस। तो वो प्रेशर था कि आपने एक तो वॉल्स के पीछे से मुझे प्रेशर था कि आई कांट लाइक फक अप द फर्स्ट डे। सो बस वो फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया था कि दिस लाउड स्पीकर पे डाला है these 2 months I just need to forget everything. The only thing that I'm going to do on set is think about my script, think about my scene, read my scene, and get as much help as I can, and that's all I need to accomplish. So I think वो first day बहुत daunting था क्योंकि मुझे अब पता नहीं था कि अब ये किस level पे actors आएंगे। Just to like continue this conversation, the people who on the set who are more experienced to you, how did they like, Very open. Really? Very open. The first day पे कौन था, सहर थी, और मैं जब अंदर गया था तो ये लोग सीन शूट कर रहे थे, they were in the middle, और मुझे बाहर से प्रोडक्शन ने कहा कि आप अंदर चले जाएं। तो मैं अंदर गया और अंदर सीन हो रहा है और मैं फ्रीज हो गया। मैंने कहा लो जी, आते साथ मैंने फकअप मार दिया, मैंने सीन खराब कर दिया लोगों का, और मैंने एकदम वापस दरवाज़ा बंद किया। फिर मैंने वापस दरवाज़ा खोला कि अब तो रुक गया मैं ना साइड से बस ऊपर जाने का स्टार्ट हो गया, और एकदम दानिश भाई ने कहा ज़रा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और ने कहा कि आगे मिलोगे भी नहीं। और वो एक बहुत मतलब एक आइस ब्रेकिंग थी कि वो आए, उन्होंने लाइक ही गेव मी अ हग, ही वाज लाइक वेलकम ऑन सेट, ये वो सहर आई, शी मेट मी। एक मैंने फन फैक्ट तेरे बारे में नोटिस किया है कि लाइक कॉलेज गेट में भी तेरा सीन तो पूरा नहीं हुआ था विद योर रोमांटिक को एक्टर, ना ही दिल पे दस्तक पे नहीं हुआ था, ना ही तेरी टेलीफिल्म में हुआ था। नहीं हुआ था
और जफा में भी अभी कुछ लग नहीं रहा। बेसिकली मेरे एक्टिंग करियर में मुझे आज तक बच्ची नहीं मिली। और अभी भी हमने जो आतिफ असलम का गाना भी देखा है जिसमें तू है, उसके अंदर भी ब्रो तेरी मौत आ जाती है। तो ब्रो तेरा अच्छा समवन नीड्स टू कास्ट यू इन समथिंग जहां पे तेरी मुझे हैप्पी ये- एंडिंग हो। हाँ ये यार। अब थोड़ा I need अजीब to हो be रहा है। the hero somewhere. No, have you ever like had a conversation with somebody that, hey, listen, do I have like some kind of like sad eyes or something that you kind of like always put me in this role where Bro, I'm he like, does this very well कि आपको तरस आता है इसके लिए काफी ज्यादा, क्योंकि ये है भी शरीफ आदमी। और कहते हो यार कम ऑन ब्रो, हो जाए तेरे साथ। But अब मैं थोड़े से मतलब उस not so nice roles भी I think I'm gonna be ready for them now. Do you have fear being typecast, or is that something that hasn't crossed your mind yet? No, of course. शुरू से मुझे था कि कॉलेज गेट के बाद मुझे था कि आई कांट जस्ट कॉन्स्टेंटली डू कॉलेज टाइप रोल्स। yeah, not a kid, not a So bacha. Jafar was one of them, but maybe going forward I might not तुझे do कोई that too much. criticism या I want to call it criticism, but like लोगों were people skeptical के from like a content creator to a model to becoming an actor, तुझे कुछ इस तरह की like pushback मिला था, not from like people in the industry but like general अवाम को like तुझे Maybe accept मेरी करने अपनी की- ऑडियंस जरूर कभी कभी there's always comments के यार ये मतलब कंटेंट क्रिएटर्स क्यों एक्टिंग में आ रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक के मैं और खाकान और मामिया और नतालिया हम लोग को बहुत बड़े मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स थे। वी वर स्मॉल टाइम। आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट्स वी गॉट व्हेन वी हैड लाइक 20,000 फॉलोअर्स, व्हेन वी weren't even content creators, we just had an open Instagram account. So I think the industry thing has helped us like become better content creators, and it's just something that at least me and Khakan and Taimuri we're interested in. हमें मज़ा आता है, and मेरे लिए तो especially because I do the cooking thing, and before I used to do the fashion and fitness thing also. So that's something that I don't want to let go of. और I think मुझे inverse उसका ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है कि maybe my acting career will help me grow my cooking thing, but I don't think my cooking thing helps my acting career or allows me to get And even if you rewind time a little bit more, then before all of this also comes your theater thing. So Yes. there's always like a, you're stemming from Yeah, theater into... it's not like I just got into Yeah. acting randomly. Yeah, acting I at was the- really interested in it. Yeah, A levels, मैंने O levels में debates in theater, and then A levels में सिर्फ theater, फिर university के अंदर भी first, second, third year तक मैंने किया theater, local circuit तक. So that was something that I was always interested in. It was just that theater was dead in Lahore. There was nothing to do. There was no money in it, which is why I didn't pursue it. I didn't want to do it because I was like, why am I wasting my time doing something which matlab, is not gonna help me make a career? Because वो एक थोड़ा graduate होने के बाद एक बहुत important time था कि अच्छा देखना है क्या करना है। मैंने फिटनेस की दुनिया में रहना है, मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया में रहना है, मैंने वो मॉडलिंग तो चलो एक रैंडम बस स्टार्ट हो गई थी बिकॉज आई हैड अ फिटनेस अकाउंट एंड आई गॉट वन शूट, देन आई गॉट अनदर शूट, एंड देन द बॉल जस्ट केप्ट रोलिंग फॉर लाइक 3 years, which was great because modeling helped me sustain myself for a good 2.5, 3 years. So I could figure out what to do with acting, what to do with content creation, what to do with fitness and my business. So I feel like कि content creation लोगों को मे भी लगे कि यार ये कहाँ से उठ के आ जाते हैं, ये बचपन से एक्टर्स नहीं बनना चाहते, but I don't think you मतलब ये आपका ख्वाब था। और अगर मैं अपने बारे में देखूं तो मेरा ख्वाब था। इट्स जस्ट कि मैंने उस ख्वाब को छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कभी टीवी के बारे में नहीं सोचा था। मुझे थिएटर पसंद था, मैं थिएटर करना चाहता और ये जो था। Lahore theater circuit, I would add, like you're, I would say, a product out of it. Shah Fahad is a product. He's an actor now. Meher Bano is Meher also Bano is- a Lahore theater. Yeah. person. Meher Bano and I were heads of our societies in school. Yeah, yeah. मैं हमारी टीचर थी एक टाइम पे, ड्रामा टीचर। अच्छा, बहुत आला। Yeah, So yeah. Shah Fahad also. we've all been doing this in one way or another since we've been kids. Khakan also कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत करता रहता था Bilal इस Khan तरीके की का। Yeah. मुझे ये बता, ये अभी कंटेंट क्रिएशन की बात हुई थी, अब you're doing both of these things, you know, simultaneously. What do you find is like
more taxing? Well, taxing. Let's say, what is the more harder occupation in your opinion? Like content, huh? Like, but bro, I just wanna, from a content creation side, it is much more frequent. तो मेरी बात समझ आ रही है? Like you have to keep on coming up with stuff to put out and like you know, थोड़ी देर बाद वो चीज़ saturate भी हो जाती है. Then you have to like innovate वगैरह वगैरह. तो उस point of view से like I'm assuming people take it for granted कि मुश्किल काम कितना हाँ, है obviously. और कितना taxing है. हम रेलेवेंट नहीं रह सकते अगर हर साल हम अपने आप को इनोवेट ना करें. कंटेंट स्टाइल, जब हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था और जो आज कंटेंट है उसमें बहुत फ़र्क है. और उसके अंदर बहुत, अब तो आपको मतलब you have to invest into it. I've invested money into it. I keep investing money into it with every video, you know, hiring videographers or making a set, or with the cooking thing, buying lots of like stuff. If I do a Ramzan series, 10 episodes, it's gonna cost me a bunch of money just in my point is, ingredients. like, you have to- just in What's your setup? अभी तक तो मैंने घर पे ही सिर्फ बनाया हुआ है. Now I'm thinking of making like a studio, renting out a place and having like a full-on studio to get onto YouTube, because मैं अभी तक YouTube पे नहीं हूँ. Okay, I you're just on, make like, Instagram content. Reels and हाँ, shorts type. चीज़, exactly. ठीक है. Do you, So sorry, हाँ बोल. लाइटें खरीदना मतलब, और अगर आपने खुद एडिटिंग नहीं करनी या शूट नहीं करना तो आपको हर वीडियो पे पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको एडिटर और वीडियोग्राफर चाहिए. सो just like any other career, just like a business, you have to invest money into it. So it's not that easy, but it's your own thing. So your own thing will always be like, you'll have more accountability for it, you'll have more ownership of it. आपको मज़ा ज़्यादा आएगा naturally क्योंकि आप हर चीज़ उसकी कंट्रोल कर रहे हो. So maybe you like acting के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, आप So you के अंदर still think आपका- acting is a harder occupation than content creation? I guess because maybe the cooking thing is because it's mine, it comes more naturally, my hours are mine, I'm the boss of what content I want to make. मैं किस लाइन पे जाना चाहता हूँ या मैं किस स्टाइल से शूट करना चाहता हूँ, मेरी क्या टैग लाइन होनी चाहिए, हर चीज़ मेरे उसके अंदर है. अब लेट्स गेट कुकिंग अगर मतलब किसी ड्रामे का Still कैरेक्टर, waiting on the merch. Yes, Still oh waiting on यार, the मैंने merch. थोड़ी सी टेस्टिंग करना शुरू की है. तो अगर लेट्स गेट कुकिंग का कैरेक्टर किसी ड्रामे में होता तो शायद वो लेट्स गेट कुकिंग ना कहता, वो कहता आओ खाना बनाएं. बट क्योंकि वो मेरी चीज़ है तो आई नेम्ड इट लेट्स गेट कुकिंग. And down the road, does this lead to you opening a restaurant? 100%. Hey. Dude, I've been into food since I was 11 years old. जब And what cuisine are you gonna? Do you have a? Obviously, बंदे ने सोचा होता है कि ये I नाम might, होगा, I ये might do location. like a. मुझे पता है ऑलरेडी जो मैंने एक छोटा सा स्टार्ट करना है Okay. within the next year or two. small place अच्छा. or something like that. I want to get into it on a small scale, learn the ropes for the food world, because वो बड़ी complicated दुनिया है. Restaurants हर वक्त खुलते हैं और बंद होते हैं, तुझे पता ही है कि कितने मुश्किल होता है एक restaurant को चलाना. यार तो लाहौर में आजकल काफी pop-up culture चल रहा है, तो why not like a That's Zara what Khan I've pop-up? thought. The baked pop-up Yeah, वाली yeah. जो जगह है. Yeah, yeah. वो I actually discussed it with a friend कि maybe we could Yeah. collaborate and The rent it team out of for a Baked, weekend. if you're listening, please, we have a Zara Khan pop-up maybe. It might work for the both of us. Yeah, but yeah, I'm of I'm course. developing my recipes for it right now. कि Actually, मैंने you वहाँ- do? Like, is that something that you've started doing? Yeah. Because मुझे apart from the content, I want to be in it within the business world of food. So the recipes that you've so far put up, are they also some of your original recipes? या क्या हाँ, situation? it's because अच्छा. I've always watched a lot of food content. मेरा अगर आप YouTube देखो तो वो equal split होगा फुटबॉल न्यूज़, Formula 1 न्यूज़ और मे बी 40% 50% सारा कुकिंग यूट्यूबर्स हैं. मैं बाकी इतनी पाकवेलियन. और वो तो 15% और बाकी 10% इंस्टाग्राम पे. नहीं तो अगर आप culinary concept development कर रहे हैं अपनी recipes के ऊपर, तो like क्या, like you didn't tell me that क्या, what's the cuisine I think he wants that to keep it a you're secret then. The process for it is because I've watched a lot of content. तो अगर for example if you take a pizza, yeah there's 1,000 different ways to make a pizza. There's 1,000 different ways to make a pizza sauce. There's 1,000 different ways to make the pizza bread. Yeah. तो because मैं बचपन से देख रहा हूँ all of these people around the world who are good at making a pizza, तो I understand कि अच्छा if I want to sell a pizza, I'll have to make
at least 500 pizzas, 500 different ways in order to realize कि अच्छा ये वाला मैं बनाना चाहता हूँ, ये अच्छा है और ये हमारी मार्केट में बिकेगा कि नहीं. तो अभी जो प्रोडक्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ मैं उसके उस स्टेज पे हूँ कि बस टेस्टिंग दोस्तों को खिलाया दो. टेस्टिंग शुरू में ऑब्वियसली कभी अच्छा बनता है कभी नहीं यार बनता. तो ये टेस्टिंग्स कहाँ हो रही हैं? Why are we not there? ब्रो ये नेक्स्ट स्पॉट पे आई थिंक बस मुझे लाना पड़ेगा. ठीक है, Have done you है. been approached by someone for like a restaurant or something along those lines As a नहीं. as a consultant? I wish man. अच्छा अच्छा. Because I feel like there's so much in there कि मैं बस लोगों को बता सकता हूँ कि यार मे बी ये चीज़ रख I लो. think ये I know अच्छी the नहीं. reason कि क्यों नहीं हुआ. तूने एक बड़ी health code violation जो है ना मेरे तेरी उस पे देखी हुई है. तूने खाना रखा हुआ है अपने सामने और तूने सिर्फ एप्रन पहना हुआ है. बस इस तरह तू खड़ा हुआ है. As the shirtless chef. Bro, अब मुझे नहीं पता वो पैंटलेस भी थी या नहीं. सिर्फ ये नजर आ यार रहा था. वो I actually wanted to do it. That was my first concept for a food show, the shirtless chef. और फिर Bro, बड़ी बस health code violation मुझे ना होगी थी. बड़े लोगों ने कहा कि ब्रो ये पाकिस्तान में नहीं चल सकता, ये मत करो, तुम शर्टलेस नहीं आ सकते. फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने उसको लेट्स गेट कुकिंग बना दिया. एंड इवन लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, me coming up with the let's get cooking concept and how I shoot it, how I do the voiceover, how I show the visuals, that was like 2-3 months of work. Okay, I made a list of 10 different YouTubers that I like cooking में, 10 different TikTokers and 10 different Instagram pages. और मैंने उन सब का देखा कि अच्छा ये लोग शूट क्या करते हैं, कि किस तरीके से शूट करते हैं, इनके USPs क्या हैं, इन सब की टैगलाइंस क्या हैं, ये सब की पर्सनैलिटीज़ क्या हैं. सो द लेट्स गेट कुकिंग थिंग इज़ लाइक अ पर्सोना. दैट्स नॉट, मतलब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे बात नहीं करता कि व्हाट्स अप गाइस आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़े. मतलब इट्स अ प्रोडक्ट दैट आई हैव मेड. सो पहले आई नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ एज अ ब्रांड दैट सेल्स टू पीपल. एंड अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छा चल रहा है. आई जस्ट नीड टू ग्रो इट एंड बी मोर कंसिस्टेंट विद इट. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट स्टेप इज के अब जो खाना बेचना है दुनिया को इवेंचुअली अब उस पे काम करना. The Bear देखा है? One of the best TV shows I've ever seen. मैं अभी season 1 मेरा खत्म हुआ है, beginning of season 2, but it's such a great show. Oh, dude, everything about it, the writing, the acting, the music they The use. music. Off, Sir. dude. क्या मतलब कैसे बनाया है? There's literal YouTube videos 20-20 मिनट आधे घंटे की dedicated to how this one episode is perfect in every way. ये बहुत कम शोज के साथ होता है कि लोग डेडिकेट करते हैं वीडियोस के यार ये एपिसोड परफेक्ट थी, इसके अंदर एक चीज भी बुरी नहीं थी. अगर तुम लोगों ने तुमने देखा वो जो क्रिसमस वाली एपिसोड है वो क्या एपिसोड थी ब्रो. नहीं बहुत अच्छा शो है. नहीं बहुत ये अलग season show. 1 में तो नहीं होता क्रिसमस एपिसोड. ये सीजन 3 में है. हाँ बस आ गया. तो आई फील लाइक अगर hopefully I'm setting myself up with my content in a way that whenever something like that gets made in Pakistan, I should be like the first person to think of कि यार हाँ that's the cooking guy, at least he knows how to fucking chop a vegetable around. तो Bro, मुझे तो उसका concept बहुत अच्छा लगा था, like the way they start off कि like you know failing restaurant वगैरह वगैरह and like the struggles that come with it. It's a very relatable concept for a lot of people जो होते हैं यहाँ पे. मुझे बस उसकी जो थोड़ी like story line के हिसाब से बहुत अच्छा था, पर जो cop out थी ना कि हाँ रेस्टोरेंट फेल हो रहा है पर हमें पैसे बहुत ज्यादा. स्पॉयलर्स इन दिस सीजन 1 के एंडिंग में like रेस्टोरेंट फेल कर रहा है पर उनको पैसे बहुत ज्यादा कहीं से स्टैश मिल गए हैं. तो स्टोरी के हिसाब से बहुत अच्छा था, बट आई वाज लाइक यार आई वांटेड टू सी हाउ दे वुड See it गेट आउट fail, ऑफ yeah. दिस. No, not see it fail, but like see them bring it back from such a organically. हाँ. I think for anyone who's also starting a restaurant, that's a very good show to watch. It's fucking My stressful. friend is starting like this cafe in Delhi और मैंने उसको कहा था कि bro you need to watch the Bear. किधर, लाहौर में? लाहौर में. And I was like, dude, you need to watch this show because if you're running it, this show will tell you all the bullshit that you're gonna go through. एंड वैसे लाइक चलो ठीक है अब थोड़ा करते हैं कुछ. मैं भी बहुत बड़ा फूडी हूँ. एंड यूर लाहौरी राइट. Top 3 pizzas in Lahore because you discussed about like a Pasta La Vista. ठीक है. good one. Really? हाँ ठीक है. I don't know. I haven't had Pasta La Vista in maybe a year now, but when जब शुरू में वो आया था, I remember when he was testing the product, I met him through a friend,
and he told me that he went around Italy for about 3 months just studying pizzas. और मेरी ये बात सुन के ना मैं फक हो गया था कि ब्रो ये बंदा है जो मैं बनना चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं एक जगह फिरूँ, एक प्रोडक्ट को टेस्ट करूँ, उसके रूट्स देखूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे बना था. तो पैलेस्टाइन जाता पिज्जा तो वहाँ से बना है. Boom. Facts. True. No, asal mein. What do you mean? Yeah. Yeah. Did you know that? Even like pasta is from China. It's not from Italy. They're just good at branding. Mind you, it. Fuko Yeah. का I think मैंने पास्ता एक खाया था. I forget the name पर वो बहुत अच्छा था. Pesto pasta. I hate pesto. Acha, I like pesto. There's 2 things that I search out in restaurants. One is a good pesto dish, either a pesto sandwich or a pasta. या फिर ये मेरी और खाकान की चीज़ है, हम हर जगह जाके एक क्लब सैंडविच ट्राई करते हैं क्योंकि दैट्स अ प्रोडक्ट जो हर जगह होता है एंड यू कैन रियली टेस्ट आउट अ रेस्टोरेंट बाय सीइंग व्हाट काइंड ऑफ क्लब सैंडविच करता हूँ. हाँ, फ्राइज भी. जहाँ अगर फ्राइज अच्छे हैं तो रेस्टोरेंट अच्छा है. Bro, ये चीज मैं भी करता हूँ and बहुत wait for है. it. I've inherited this adat from my dad. My dad has 2 dishes, fish and chips and club sandwich. Wherever he goes, वो हमेशा वो ट्राई करते हैं. पास किया तो फिर कभी फिर बाद बाकी में चीजें. मंगवाएंगे. डेफिनेटली फिर आ गए. यार persistence. कह रहे खरीदो. Okay, ठीक है. पहला उसको पता है लेट्स गेट कुकिंग है यहाँ. Pasta La Vista. Pasta La Vista. There's this new place in Raya जिसका पिज्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसका नाम भूल गया, और फूको का पिज्ज़ा भी मुझे अच्छा लगा था. अच्छा ठीक है. Neapolitan style सूजी. हाँ, in the मुझे crust. न्यूपोलिटन स्टाइल ही, मुझे फास्ट फूड पिज्ज़ा नहीं हाँ, था वो अच्छा मोटे लगता. वाले होते हैं. हाँ, ठीक है. And सूजी in the वो. अमावी का खाया हुआ है? अमावी का नहीं खाया, बट अमावी का क्लब सैंडविच इज वन ऑफ द बेस्ट इन लाहौर. ओह ब्रो, उनका क्लब सैंडविच, एक्चुअल शाउट आउट टू हूएवर मेड दैट क्लब सैंडविच. उनका टर्की क्लब है. नहीं ब्रो, बहुत अच्छा है. ये मैंने Like मालूम है तो it's बंद हो like गया था. और वो लोग भी ना अपने क्रस्ट में सूजी लगाते हैं. मैंने नोटिस किया है, anybody who puts सूजी in their crust like pizza dough is amazing. Pizza क्योंकि like एकदम से इटालियंस भी अपनी क्रस्ट के अंदर कॉर्न मील थोड़ी सी नीचे यूज करते हैं. सो that's the whole thing. गुड यार, क्लब सैंडविच बॉयज. हाँ यार, और पता है, अच्छा मेरा एक you said to मावी ना, मेरा एक शौहर बताऊं किसको क्लब सैंडविच का? All Pakistan Army messes. जो बात है, अच्छा. मैं मजाक नहीं कर रहा. मेरा This is bro, बचपन like- ब्रो. हाँ, this is bro, आर्मी मैसेज के क्लब सैंडविच कमाल होते हैं. अच्छा, your army brat as well? Yeah, my अच्छा, dad was two in the army army. brats. ऑल्सो Yeah. बहुत awesome. इसलिए मैंने बड़ा बोल दिया. कहाँ रहे हो? ब्रो मैं तो आई एम द यंगेस्ट, सो लाइक मैं तो लाहौर ही रहा हूँ, लेकिन वैसे तो ब्रो कराची, दादू सारा. अच्छा, I am also the youngest, but I got to go through Karachi, Pindi Peshawar and Multan. हाँ, ओके. In मैं my खालिया memory. सेम एज पैदा हुआ हूँ. अच्छा, हैदराबाद. हाँ, उसके बाद मैं लाहौर आया हूँ और बस खत्म. खत्म हो इजी लाइफ. बहुत आसान. अच्छा ब्रो, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था फॉर द एपिसोड, तो एक वीडियो मुझे मिली थी कि आई एम गोना शूट दिस गाय ब्रो. कहाँ पे है ये? यहाँ पे ही है. Me whenever this banger comes on. अच्छा, तो मुझे एक वीडियो मिली के जफा के ज़रार खान की असलियत जाने. ओ, ये वीडियो मैंने भी देखी है. मैंने देखी है ब्रो. ये चीज क्या है, मेरी दिखी हुई तो आई हैड लाइक, तूने क्विज की वो कर ली है, तो मैं एक ट्रू और फॉल्स करने लगा था. मेरे पास 3, खैर 2 जो 3 मैंने उस वीडियो में एक भी सही चीज नहीं थी ब्रो. तो खैर ब्रो, तू मुझे बता इनमें से सच क्या है. सबसे पहले तो ये मैंने तुझे फेंकनी है कि ज़रार खान कैन डू 100 पुश-अप्स इन अ रो. I could. Good. Yeah. I've never done it, but I've done like मुझे याद है तेरी स्टोरीज के 50, ऊपर जो 60 तो मैंने की मुझे है. याद है तूने स्टोरीज पे लगाया था कि लाइक ओह जस्ट डिड लाइक 200 पुल आउट्स. मैंने बट वो एक गो में नहीं होते. मैं- वो तो मेरा वो है, मेरा बर्थडे या वो हाँ, हर साल मैं birthday या के लिए बर्थडे था. पे करता हूँ या न्यू ईयर्स पे करता हूँ, which is 1 hour minimum. Every minute I do 10 push-ups and 2 pull-ups. Okay. और वो बस मैं every minute करता रहता हूँ. every 10 minutes every minute every minute you do 10 push-ups. and 2 2 pull-ups. pull-ups. और ये मैंने मैक्स किया हुआ है 2 hours and 20 minutes. मैं खत्म हो गया था. This is just because I'm like a fitness guy. So this for me is just to keep myself in check and to like keep my little bitch in check also. It's not normal to do,
उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं Exactly, कह मैं यही कहने रहा लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने आप को इन चेक रखने के लिए करता हूँ कि you know you got to be able to do some hard shit sometimes. So that I do this once a year just to understand ke whether I'm a little bitch or am I not a little And you've bitch. been doing this for how many years now? 4 साल। All 4 successfully? हाँ, Nice. इस साल मैंने न्यू ईयर्स पे नहीं किया था क्योंकि मैं बीमार था, तो फिर मैंने अपनी बर्थडे पे कर लिया। चलो ठीक है, कमाल यार, good one. I made it But up. this I year could was not the hardest fathom because doing now I'm this. getting older also, and not as fit as I was last year. But you still gym though, right? Like Yeah, I work out. Yeah. But like because of the acting thing और generally भी मैंने थोड़ी सी clean eating से भी बीच में थोड़ी सी break ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि mentally ना मैं meal prep कर के clean खाना खा के 6-pack abs constantly रख के मैं बस थक गया था. So I gave myself like 6 months off. I was like, you can eat whatever you want. You have to keep working out. Obviously, वो भी नहीं है कि मुझे जाना पड़ता है या कुछ है. It's just I wake up, I go to the gym. That's just like how my routine is. And when you're doing clean eating, do you still give yourself cheat days? Like Yeah, once a yeah. month, right? Yeah, What's the cheat day? Cheat day. Cheat day. Ultimate मेरी cheat मैं day. कोशिश करता हूँ कि मैं cheat meal रखूँ. Okay. बड़ी सी. फिर उसके अंदर like it could be mostly it's like if I'm with my friends I'll do this, so it'll be like a burger type meal with like a maybe a milkshake and fries also, and then I'll order like chicken tenders as well. वो फिर easy like 1,500-2,000 calories वाली meal होती है, but वो मैं अपने आप को देता हूँ. और I realized कि ये मैंने साल 1.5 किया, and for a year and a half I had a 6-pack constant, and I was doing this maybe sometimes even twice a week. बट उसके अलावा मेरे लिए बड़ा आसान था तब गोइंग बैक नेक्स्ट डे कि सुबह उठे बैक टू नॉर्मल. अभी रिसेंटली बिकॉज आई बीन वर्किंग मोर एंड कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये वो उसके अंदर थोड़ी मील प्रेप करना फिर मुश्किल होता. Hypothetically, कोई बड़ा चैनल आता है तेरे पास, वो बोले अच्छा जरा भी लीड रोल दे रहे हैं तुझे नेक्स्ट टू द co-actor of your choice, but you have to gain 100 kg. I'll do it, bro. Really? I wish I get this role, bro. I'll gain whatever they want. I thought to because बोलेगा- then you know what I can do? I can sell a fat loss program because I'll be losing weight at the same time. Good one, good one. You know, do you understand कि वो 6 महीने या साल का मेरा क्या कंटेंट बनेगा जब मैं पहले वेट गेन करूंगा उसका और फिर जब मैं वेट लूज कर रहा हूँ. That's like बड़ा enterprising है. And what's easier for you, to gain or to lose? to lose. To lose. Ah, okay. मैं लूज बहुत इजीली, मैं अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि आई वर्क आउट रेगुलरली एंड आई एम अ फिटनेस लाइक आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर आल्सो. दैट वाज लाइक वन ऑफ द करियर्स दैट आई हैव बीन थ्रू एज वेल. तो आई अंडरस्टैंड हाउ टू लूज वेट वेरी इजीली, और वो आप मोटिवेटेड भी होते हो. वेट गेन करना बहुत आसान है क्योंकि मुझे खाना पसंद है, लेकिन वो इट डजंट फील नाइस. So mentally it's harder to gain weight because you keep seeing yourself और आप बस कह रहे होते हो यार मैं क्या लग रहा हूँ. और अब मैं बिल्कुल भी किसी को फैट शेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ. इससे मुझे बात याद आती है. I'm going to segue this एक ही बार नीचे रख लो. इन दिल पे दस्तक में in one of your scenes मैं देख रहा था, मैंने कहा अच्छा हाँ जरा mature boy बना हुआ है, देखते हैं अगर वो कोई out of character बात करता है. तो तेरी लाइन थी इस दुनिया में, अब ये कह रहा था ना मैं फैट शेप नहीं करता, कहता है इस दुनिया में दो लोग किस्म के लोग हैं, फिट या फिटे मुंह. नो फैट. ये यार देखो, काउंट योर मैं fitness ब्लेसिंग्स, trainer काउंट योर हूँ. ब्लेसिंग्स नॉट योर कैलोरीज. तो ब्रो तुझे लाइन याद है पूरी? ब्रो मैं देख रहा Heavy, था यार props to this guy. Yeah, props ये to इतनी him. रिसर्च जो वो है तो- ना, कल भाई ने पूरी 13 की 13 एपिसोड्स देखी हैं जफा की. कल इसकी वजह से मैंने भी 13 देखी क्योंकि इस हफ्ते की मैंने अभी तक नहीं देखी हुई थी. ब्रो मैं बस होप कर रहा हूँ कि अब मुझे नहीं पता मैं किसके साइड पे हूँ. आई वांट, अच्छा मेरी प्रेडिक्शन है तुझे फिर से बंदी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है वो उसके पास चली जाएगी. एटलीस्ट मैं थोड़ा सा, मेरा कैरेक्टर तो क्लियर हुआ है ना, हाँ कैरेक्टर तो क्लियर हुआ है. कि मतलब मैं आई वुड हैव रिस्पेक्टेड यू मोर अगर मैं ऐसा होता. हाँ, क्या मतलब मेरी अम्मी ने मुझे रोक लिया यार, तूने मरना था तो मर जाता. बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि यहाँ से तेरा कोई वैलर सर्कल फिटनेस का आइडिया तो नहीं आया
कि फिट या फिटे मुंह से तूने कहा नहीं नहीं, कि ये मेरी लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, ये दिल पे दस्तक के राइटर की लाइन थी, और उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर लिखा था मुझे उसका भी. प्लेइंग अ मैच्योर कैरेक्टर वाज रियली फन एंड आई फेल्ट लाइक आई गॉट अ रियली गुड audience review from it because people I look at the comments on YouTube. अच्छा, you're not like नहीं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट गेट लाइक वेरी सैड अगर मेरी कोई बेइज्जती कर रहा हो. मैं जितना बड़ा अपना क्रिटिक मैं हूँ, वो कोई ऑडियंस मेंबर नहीं हो सकता. मैं कभी कभी खुद अपने सीन्स देख के कहता हूँ कि यार फक यू ज़रार, व्हाई डिड यू डू इट लाइक दिस, यू शुड हैव डन इट लाइक दिस एंड देन इट वुड हैव बीन मोर रियल, या ये या वो. बट दैट्स जस्ट द प्रोसेस राइट नाउ. तो ये अभी तुम्हारी एंटरप्राइजिंग बात हो रही थी, अभी फिर फैट शेमिंग वाली बात भी हो रही थी, तो मुझे ये जरा वैलर सर्कल फिटनेस का थोड़ा लाइक लो डाउन भी मैं लेना चाह रहा हूँ. तो could you like give me an idea? It's an app that you've started with a couple of people that like with my friend. So basically, whatever I do in life, this will be my baby because this Okay. is the one thing that I wanted to do since before social media came in and since अच्छा. before the industry came in. ये मैं करना चाहता था 2019 से. 2019, 18, 19 और 20 आधा मैंने इसको ट्रायल किया इस ऐप को. I trained at that point I was working a corporate job and I was also a fitness trainer. Where were you working? I was working at Nishat. Okay. निशात, और उससे पहले मैं BBDO में काम निशात भी like Lake City में कहीं नहीं है? नहीं, इधर उनका जेल रोड पे निशात ऑफिस था. होटल? निशात डेयरी में काम करता था. अच्छा. निशात का भी एक डेयरी ब्रांड आया है जो हमने तब स्टार्ट किया था उस पर काम करना. okay. खैर, तो आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर और मैं तब बहुत ज़्यादा फिटनेस यूट्यूबर्स को देखता था एंड आई रियलाइज्ड कि ये दुनिया के सबसे फेमस जो फिटनेस वाले लोग हैं, नन ऑफ देम आर ट्रेनिंग पीपल इन पर्सन. मैं क्यों जिम में जाके ख्वार हो रहा हूँ, और जिम में रह के आपकी इनकम लिमिटेड है. देयर इज़ अ सीलिंग. आपके पास कितने घंटे हैं दिन में. अगर आप फुल टाइम भी कर रहे हो आपके पास 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं. उससे ज़्यादा पैसे आप कभी कमा नहीं सकते. मुझे वो बात थोड़ी बॉदर करती थी कि क्या मैं सारी ज़िंदगी जितने भी कमा लूँ, बहुत हाई लेवल का होऊंगा तो लोगों से 50,000 ले लूँगा, 60,000, 1 लाख रुपए ले लूँगा एक बंदे से, फिर भी कैप होगी उसके ऊपर. सो आई वाज लाइक आई नीड a thing that can grow. This is not a business. If I'm sick, this business is dead. And what's your 30-second elevator pitch? Because I'm unaware of this app and how it Valor works. Circle Fitness is an online personal training platform which tackles the need to work out wherever you want, whenever you want, without the hassle of going to a gym, hiring a trainer. That's very expensive, paying a gym fees on top. If you want to work out at home, if you want to work out in the mountains, if you want to work out in your office, we have got your back. Good one. ठीक है. तो Okay. got it. अभी स्लैंडर कर रहा था ट्रेन दिस फिटनेस ट्रेनर लाइफ, बट मैंने उस दिन मैं पता नहीं ये क्यों बात करने लग रहा हूँ, पर मैंने उस दिन एक पॉडकास्ट नहीं, एक रील देखा. इसमें लिखा हुआ था, डू यू नो, चवल तरीन बात है, डू यू नो द ऑक्यूपेशन वेयर that have the most affairs. उनने का नंबर 1 फिटनेस ट्रेनर्स था, नंबर 2 डॉक्टर्स. I've seen it, bro. और मैंने कहा अच्छा, so it's not all bad technically. I've seen it. अस्तगफुरुल्लाह, मजाक कर रहा हूँ. Anyways, बात को आगे लेके खैर, ये फन फैक्ट्स, सॉरी, ट्रू और फॉल्स से बात शुरू हुई थी 100 पुशअप से. एक और चीज उसके अंदर लिखी हुई थी कि ज़रार खान के भाई शुजा असद के नाम से. ये वही वीडियो है ब्रो, यार ये वही वीडियो है. शुजा असद मेरा भाई नहीं है. And I was like, हैं? क्या? उसके अंदर ये भी था कि मैं 1990 में पैदा हुआ हूँ, मैं खुद 34 या 35 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरे पेरेंट्स पता नहीं बड़े अगेंस्ट हैं. हाँ, अच्छा, उसने ये भी कहा कि पश्तून फैमिली से है लेकिन ये फिर भी शुजा असद का भाई भी है साथ में. मैंने कहा ब्रो वो कराची का है, मैं कोहाट पेशावर से बिलोंग करता हूँ. So false. False. Shout out to शुजा. और आखिरी चीज, और मेरी शादी भी हुई थी किसी से. हाँ शादी हुई थी, पर आपका एक 2 साल का बच्चा भी है. हाँ सोचिए यार, मतलब इधर मैं गोलियां खा रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, बच्चा भी है मेरा. ब्रो तुझ पे कोई यकीन नहीं कर सकता. तूने अनबिलीव को भी कहा था कि तू. एनीवेज, तो अभी तेरे भाई की बात हो रही थी, तो ब्रो
you have a brother, Billy X जो है is Yes. Zara's brother. Not good. Hey, the singer. The rapper, Jatni Punjabi Punjabi नहीं नहीं फसली तेरे किधर है यार तेरा भाई? bro Pakistan he was in Australia for 10 years Okay. but he's moved back now he's working on music he's making some really nice tunes right now तो bro Off, मुझे नहीं पता था. yep हाँ exactly. ये bro a lot of this is down to him That I was gonna ask this कि like you were जो तेरी मैंने like Billy story X का सीन था यार. है मतलब like यार है. So like I remember good यार. like मैंने जो तेरे pod देखे थे तूने कहा you were in a corporate job and then you shifted into like fitness and then modeling and वगैरह वगैरह तो मैं कहने लगा था कि as having a brother that is like you know a performer a rapper etc उसका क्या did that have any impact on this decision to go from corporate to yeah I ये felt सब? I think it was normal for me बचपन से to have like a career in music or acting or मतलब any like art form तो basically बात ये है कि Billy X walked so ज़रार खान could run ये सीन है क्योंकि he did his thing in a time when there was no social media तब पाकिस्तान में खुद कुछ हमले हो रहे होते थे वाकई कोई कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे सो उस बेचारे के लिए द टाइमिंग वाज रियली बैड इफ ही हैड रिलीज्ड जटनी इन 2016 इवन Yeah, that's so true. ही मतलब ही वुड हैव बीन even today मतलब अगर वो अगर आज गाना आया होता वाज जस्ट उसकी बैड लक ये थी कि वो गाना तब आया था एंड देयर वाज नो लाइक you couldn't really make a career of music at that point the way you can now so तब वो LSE में था वो भी LSE में था और वहाँ से उसने स्टार्ट किया and then obviously because when you don't have concerts when you don't have like people becoming record labels कोई नहीं थे अब तो record labels भी हमारे musicians के लिए बहुत ज़्यादा आ गए हैं बहुत मतलब मज़े कर रहे हैं अब तो and great for them मतलब finally musicians के पास कोई मौका आया है मतलब सिर्फ ये नहीं कि आतिफ असलम और अली ज़फ़र के लेवल के musicians सिर्फ successful हैं कि अब छोटे बहुत छोटे लेवल के भी ग्रास रूट से जो ग्रास रूट से लोग पैसे कमा रहे हैं वो गिग्स भी कर रहे हैं जिस तरह मायर गिग्स करता है वो सारे नए म्यूजिशियंस को रखता है हमेशा Like Abdul Hanan, as of right now, is in Australia for a gig because Daud is in. देख ले ब्रो Like, वो अपना पूरा like वो लेके गया हुआ है. Usually तो होता है ना बंदा अकेला एक ही afford कर पाता है अकेला चला जाता है वहाँ से ड्रमर गिटारिस्ट नहीं वो बॉय पूरा यहाँ से सारे अपनी टीम लेके गया है और like yeah it's a great time to be a musician crazy. but And what's your brother's like he lives here now? Is he back? he's And is he making a comeback? ये भी उसकी आज सुबह ही हम उसकी EP की बात कर रहे थे मुझे सुना रहा था 5-6 गानों की EP अभी हम Billy X is back, guys. Let's Billy go. X is but like back, could you guys. imagine like वो फुल पंजाबी बॉय और ये हमारे पश्तून जो हैं like I just saw Any your of your face falls? Is he your brother? वही हो गया वो पंजाबी गाने गाता है मैं वहाँ का हूँ. So मेरे लिए बड़ा आसान था ये डिसीजन लेना because I was like he did it no one's gonna stop me from doing this और like मेरे लिए कुछ out of the ordinary नहीं था क्योंकि मैं बचपन में उसके कॉन्सर्ट्स पे जाता था और मैं विटनेस करता था एज अ 12-13 year old के मेरे भाई के पीछे कनेड की 100 लड़कियां भाग रही हैं हमारी गाड़ी के पीछे और मैं कह रहा हूँ लेट्स गो यार ये मेरा भाई है उस समर में लोग मेरे साथ आके तस्वीर खींच रहे हैं ओए आप बिली एक्स के भाई हो मैं कह रहा हूँ मैं बिली एक्स का भाई हूँ ज़रार एक्स ज़री एक्स यार कोई होना चाहिए इसका नाम Zilly X. ज़िली एक्स so he's the eldest brother बीच में है ना तुम्हारी no we have 2 older sisters and then it's him and me oh अच्छा And अच्छा how अच्छा older is he then? 6 years Oh, okay. काफी बड़ा है crazy bro तो देख लो ब्रो एक आर्मी डैड ने 2 लड़कों को ये काम करने दिए हैं बड़ी हिम्मत है मेरे मैंने exactly यही सोच रहा था मतलब जैसे मैंने इसमें भी पूछा मैं भाई कितना बड़ा 6 साल का बच्चा मैं सोचा था और अब्बू कहते होंगे क्या है थोड़ी यार इजी हो गए थे till the last हाँ picture. मेरे टाइम तक it was harder for me to go into fitness than it was for me to go into modeling or acting I got more of a backlash in fitness because they were like, you just fucking graduated, asshole, work a corporate job. I was like, dude, I make double the money that all my friends make. Why would I work a corporate job? But वो obviously एकदम क्योंकि तब fitness culture भी इतना ज़्यादा नहीं था. This is 2017 when I became a fitness coach.
तो तब एम फिट टाइप जगहों ने फिटनेस कल्चर बनाना शुरू किया था boom लाहौर अभी के आ अंदर। गया था AIMFIT का। उससे पहले सिर्फ जिम कोचेस होते थे और जिम कोच मतलब हमारे पेरेंट्स के लिए उस तरीके के को बहुत आला ऑक्यूपेशन नहीं थी। वो कहते थे कि 16 साल तुम्हें पढ़ाया है, पैसे दिए हैं, तुमने ये करना है तो फिर हम ना पढ़ाते। सो दैट वाज हार्ड, दैट्स व्हाई आई डिड वर्क अ कॉर्पोरेट जॉब। और फिर मैंने साथ साथ मैंने फिटनेस नहीं छोड़ी, 9 to 5 जॉब करता था, आता था 6 बजे जाके क्लाइंट्स को ट्रेन करता था, फिर 7 to 8 अपनी ट्रेनिंग करता था और 8:30 घर आता था। And what did you train them in? Like, did you have like classes? I was a group fitness trainer, तो मैं in a group train करता था क्योंकि मेरे पास एक ही घंटा था, तो I was like मैं एक बंदा तो नहीं ट्रेन कर रहा। Yeah. और because I had started in AIMFIT, तो मेरी इनिशियल सारी जो एजुकेशन थी वो ग्रुप फिटनेस ट्रेनिंग में थी। एंड आई एंजॉयड, आई वुड ऑलवेज ट्रेन 6 people at a time rather than 1 person, बिकॉज एक के साथ आप खड़े होते हो, बोर हो रहे होते हो। 6 के साथ आपने परफॉर्मेंस देनी होती है, जब आपने माइक पहना होता है और 6, 8, 10 लोग आपको देख रहे हैं और वो आपको फॉलो अलोंग करेंगे, तो that's And would you that's play like acting. Billy X in your gym playlist? Royalties अब आती है, सब नहीं आती थी, अब आती है। तब नहीं आती थी यार, उस बेचारे को रॉयल्टीज भी नहीं मिली यार सारी जिंदगी। आई फील सो बैड फॉर हिम के he has one of the biggest songs that has ever come out of Pakistan. Yeah. Bar none. No one can compete with Jatni. Does he own it? Does he own the song? Yeah. Bro, बेचते हैं, अब तो यूनिवर्सल सोनी आ गए हैं, easy. Connect him with someone please. $100,000. कॉन्वर्सेशन जो है ना बस इधर उधर चलती जा रही है, मेरे सारे नोट्स में सोच रहा होता हूँ कहाँ पे- ट्रू और फॉल्स? नहीं ट्रू और फॉल्स अब हो गया। मैं अब खैर मेरे सामने अब लिखा हुआ है, मैं ये बात कर लेता हूँ। तो ब्रो मुझे आई वांट गो बैक टू 12वां खिलाड़ी। तो तुझे पता है, अच्छा तो 12वां खिलाड़ी यू गॉट अ कॉल टू कम टू ऑडिशन फॉर द रोल ऑफ सुहेल। हाँ I was so how I got that was कि मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी बिल्कुल, एंड इट वाज कोविड। और कोविड से बिल्कुल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी फिटनेस पे फोकस करने के लिए, अपना यही वैलर सर्कल स्टार्ट करने के लिए। बट तब मैं डेवलपमेंट स्टेजेस में था एंड आई वाज सपोज्ड टू अर्न मनी थ्रू पर्सनल ट्रेनिंग। जिम्स बंद हो गए, नौकरी भी छोड़ दी, पैसे आना बंद हो गए, 6 महीने ये फक शो चलता रहा। एंड बाय अक्टूबर आई वाज लाइक, मुझे याद है मैं अपने दोस्त दीदी के साथ बैठा हुआ था एंड आई वाज लाइक डूड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फील लाइक आई एम अ फेलियर। I'd always been good or successful at whatever I had like put my mind to, but this हाँ अल्लाह का शुक्र है, but COVID really fucked me up। और मैं बस like almost मैं रो रहा था उसके साथ कि bro ये क्या हो रहा है, like I feel like I made the wrong decisions, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मॉडलिंग भी अभी स्टार्ट हुई थी। उसके एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है, there is this movie that I'm a part of, जिसके अंदर I met Myra Khan. It was a very small role. That was my first acting role. और उसके अंदर काम मेरा माहिरा के साथ था, 2-3 दिन का शूट था। So I went on set, मेरी थोड़ी उससे गपशप लगी, and then she offered me the role in 12वां खिलाड़ी. She was like, "Are you interested in acting?" I was like, "What do you think of it?" नहीं was ऐसे ही। So she was like, "Okay, my manager will get in touch with you." So then a week later they called me. I gave an audition at यही बात है Heritage। मेरा इसका वो ताल्लुक बैंड जुड़ा हुआ है। हेरिटेज में हुआ था 12वां खिलाड़ी के ऑडिशंस। वो लोग सो शबीर और दानियाल और मायरा और डायरेक्टर जो थे दे वर डूइंग द रीडिंग्स, और मेरे कैरेक्टर की और आई थिंक खाकान के कैरेक्टर की कास्टिंग तब हो रही थी एंड दे वर जस्ट लाइक लुकिंग एट पीपल। तो मुझे बस कॉल आई कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। मैंने कहा नथिंग, इट वाज लाइक 10 PM and they were like come to Heritage right now, the director's here, Myra's here and the leads are here, तो आपकी एक रीडिंग करनी है for us to cast you। मैंने कहा डन। मैंने अपनी अम्मी को कहा मैं जा रहा हूँ। मेरी अम्मी कहती कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किडनैप कर लेंगे। मैंने कहा मैंने कहा आप कहती है पता नहीं तुम्हें किसने कॉल किया। मैं कहा नहीं ईजी है, मतलब आई मेट द पीपल ऑलरेडी। सो मैं चला गया, मैं पहुंचा हेरिटेज, मैंने ऊपर गया, द AD got me inside and Myra inside, the directors there, Adnan Sarwar, और मैं पहली दफ़ा डैनी को भी मिल रहा हूँ, शावीर को भी। शावीर को मैं एक दफ़ा मिल चुका था because I had modeled for his clothing brand। और बस उन्होंने कहा कि आओ ये स्क्रिप्ट पढ़ो।
स्क्रिप्ट खोली, शुक्र है वो इंग्लिश में लिखी हुई थी क्योंकि तब मेरी वो मतलब रोमन उर्दू टाइप वाला सीन था, क्योंकि तब तक बहुत साल हो गए थे स्कूल से निकले हुए और मतलब कभी उर्दू अखबार भी नहीं पढ़ा था। अब तो स्क्रिप्टें पढ़ पढ़ के उर्दू वापस यस हो गई है। तो पहले तो मैंने शुक्र किया कि इंग्लिश में लिखी हुई है, फिर हमने पढ़ी और बस उन्होंने कहा डन है, तुम सुहेल का रोल तुम्हारा। और मैं घर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो कह रहा हूँ लेट्स गो यार, मैं वेब सीरीज में आने लगा हूँ भैंस की दुम। और मुझे जब इन लोगों ने कहा ना यार कि हेरिटेज पे हुआ था, मैं वाज लाइक यस आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी ब्रो। ओके, एक मायरा की मैं फनी कहानी बताता हूँ ब्रो मेरी। अच्छा तो He मायरा does have a thing for heritage, by the way. Now that I think about it, कि ये भी अगर heritage में हो रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही like, because I follow the heritage Instagram page, और उनका spotted के अंदर Myra Khan, somebody Myra Khan, somebody Myra Khan, somebody literally वो भी 2 दिन भी नहीं होते फिर से Myra Khan। हम like अच्छा यार कुछ होगा। bro there was a rumor Go to place for the celebs bro. Azrar Khan, Shabir, Danny Z, Adnan Sarwar। Anyway, so हाँ रूमर एक ये भी था कि उसने हमारा एक पिलो चोरी किया था। दिस इज अ रूमर, मुझे नहीं पता। दिस इज अ रूमर। क्यों बोलेगा? ये तो बोल क्यों रहा है? Bro, because it's a fun fact. It's a fun fact. You know, देखा ना जैसे रिहाना का the thing about Rihanna, like every time like the paparazzi like shoots her coming out of like a party, she always has a glass in her hand. She's always shot with a glass in her hand. तो उस पे like किसी I feel like this was like some show where they were saying they showed like 20-30 pictures of her coming out of clubs with like a wine कितने glass glass चोरी किए? कि तुम glass चोर हो, तुम like glass क्यों चोरी करते हो? Like ठीक है you're like a you know like a fashion icon and everything, but like तुम कितनी बड़ी glass चोर हो, तुम जब भी पार्टी से निकलती हो तुम हमेशा उनका glass लेके निकलती हो। तो you could like say this to No, the thing is, no, इतना वो वापस होती है उसमें। No, the thing is कि उसने she went on voice over man, ठीक है, और उसने यही बात की कि एक रूमर था कि मैं एक होटल का पिलो चोरी कर ली थी मैंने, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो ये फिर वहां से मुझे रूमर का हाउस इन कराची I'm assuming and then like true. like heritage हाँ, second क्योंकि- home away from home तो ब्रो Great place. यार मैं तो silk pillow cover First time I went to Giramondo was at Heritage. तो ब्रो खैर कहानी ये थी, तो मेरी बहन का इंटरेक्शन हुआ था उससे, तो यू नो मी एंड माय फैमिली ह्यूज मायरा खान फैंस, ठीक है। तो एक दिन लाइक आई थिंक शी वाज लीविंग हेरिटेज एंड शी वाज वेटिंग फॉर, उसकी गाड़ी आई थी उसको पिक करने के लिए, एंड आई थिंक इट वाज अ वाइट कार। तो मिराल मेरी बहन जो है वो भी एक सफ़ेद गाड़ी में बैठी हुई थी। तो मायरा केम अप टू द डोर और उसने आई थिंक दरवाजा खोला एंड देन शी सीज मिराल, शी इज लाइक मिराल लाइक अच्छा, शी इज लाइक ओह आई एम सो सॉरी दरवाजा बंद कर लिया। मिराल ने हमें स्टोरी बताई, हमने कहा मिराल कितने जी बैठे आए खाना खाए हमारे साथ। ब्रो तो खैर ये एक रैंडम बात थी, बट आई वांटेड टू तो व्हेन आई वाज वाचिंग बारहवां खिलाड़ी ब्रो, तो अब अगर 2020 या 2019 में शूट हुआ था तो पहले सीन के अंदर ही लाइक रॉकस्टार मुंडे का गाना लगा हुआ था उसके अंदर, लाइक बड़ी एलिगोरी मैंने मारी थी। मैंने कहा यार अच्छा बड़ी प्लेसमेंट हुई है इसके अंदर। वो भी बहुत बाद में रिलीज हुआ था। अच्छा हाँ, मेरा सवाल यही We था। shot it end of 2020. So it was just shot in December 2020 and Jan 2021. And then it came out, 2022, end of summer type, because it was supposed to be on TapMad, or TapMad properly launch नहीं हुआ था. So it took them some time to like figure out the app and the website and everything, and they had to decide whether to put it on YouTube, not to put it on YouTube, if they wanted to sell it to someone else. So all of that took a lot of time, और तब तक रॉकस्टार मुंडे आ चुका था। अच्छा, और I was I gonna guess say it was the रॉकस्टार perfect मुंडे का song. पहले हुआ हुआ था या उससे बाद आया तो था? फिर टैपमैन वालों से बात करनी थी, कोई लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन देते तो एटलीस्ट वो तो हमें- होता है। टैपमैड अगर प्रीमियर लीग वापस ले आए ना इस सीजन के लिए, देखो, please. प्लीज यार, पिछले सीजन आप लोगों ने हमारा साथ दिया था, प्लीज ब्रिंग बैक प्रीमियर लीग ऑन टैपमैड। हमने फोन पे देखना ही देखना होता है। वाकई आई सॉ हिम वन डे, वी वर गोइंग समवेयर एंड ये गाड़ी में बैठा हुआ था। अच्छा प्लीज डू नॉट कॉपी दिस, एक्चुअली खैर आई माइट डिलीट दिस थिंग। हम यहाँ से ही निकले थे ब्रो। यहाँ से निकले तो ठीक है, तो ये गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना उसके ऊपर फोन रखा हुआ था और साथ वो मैन्यू का आई थिंक लिवरपूल या सिटी क्लब मैच था। गाड़ी चला एनीवेज तो
अच्छा Don't try this at Don't home, try this please, at home, please. ठीक है। You obviously won't try this at home because he did it in his car. So don't 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 try this in your car. मुझे बस उसके बाद का टाइम बता, like after 12वां खिलाड़ी, like you were doing media runs, you were doing like going on a lot of shows, तो वो experience कैसा था for someone that was like, you know, a content creator और एकदम से like इतना ज़्यादा And a like, very because I small saw time you guys- content creator. हाँ? मैं was very small हाँ, time. तो मैं बस कह रहा हूँ वो एकदम से इतना like public के आए में आना, तो what was that experience like going to media training and like सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है बट इट जो वाज वकार से खा मुझे थोड़ा सा डॉन्टिंग था बट शुक्र है कि स्कूल कॉलेज में डिबेट्स और थिएटर किया हुआ था कि पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता था और मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स तो मैंने जितनी चीज़ें अभी तक अपने करियर शॉर्ट करियर में मैंने अचीव की हैं ये सारी मैंने मैनिफेस्ट की थी ये 8 बजे का ड्रामे के अंदर आना इतने बड़े रोल के अंदर ये मैंने मैनिफेस्ट किया था 2021 के ये कोई अंदर Enigma portal तो नहीं लगाया वो अपने फोन के ऊपर? नहीं यार क्या वो पता नहीं क्या है मैंने कहा बहुत ही नहीं आपको सिर्फ Manifestation। आपने सिर्फ विजुअलाइज करना है कि ये मैं अचीव करना चाहता हूँ उसके आगे मुझे सारी बुलशिट लगती है आई डोंट बिलीव इन हैविंग लाइक अ phone What is this? wallpaper or Yeah, one of but my yeah. friends has this I was like dude what did you pay money for this What is this? Enigma wallpaper क्या है? Enigma portal? What is that? Yeah, it's a Pakistani content creator guy, right? Who makes these? I have no idea I just know it's someone who's selling these and Yeah, there's a Karachi guy. He's a media personality, and I sorry about that probably like butcher is like thinking लेकिन होता है ना like big manifestors like ये वो so he makes these like Enigma portal wallpapers for your phones where you tell him that you need I'm probably butchering this you need specific things let's say your thing is कि I want to be fit and I want to be rich so he'll make you like a wallpaper that will give out like these I don't know like आपको these visualize waves कराता है। into the like universe waves to into like the universe manifest and they'll be right next to you आपके like mind के अंदर ऐसी चीजें like खुलेंगी that they will work towards and Okay, that's Yeah, interesting. That's मेरे लिए बस वो गोल्स होते हैं कि ये मैंने अचीव करना है बट वो मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचता हूँ कि जब मैंने 12वां खिलाड़ी किया था आई थॉट अबाउट इट कि अच्छा मैंने अगर एक्टिंग करनी है तो मैंने करियर में क्या करना है सो आई thought of a certain project that I wanted to do and that was the project that I got Jaffa. It was everything जो मैंने दिमाग में सोचा हुआ था कि इस टाइम स्लॉट का करना है ऐसा कैरेक्टर करना है ये करना है वो exactly so I guess it's manifesting I don't know the माशाल्लाह, अल्लाह का wallpaper शुक्र है, helps or touch not wood, yeah touch मैं भी wood manifest yeah करता हूँ नमाज पढ़ता हूँ दुआ करता हूँ वही है और visualization वही है yeah, visualization exactly. अल्लाह से मांगो What are you manifesting now? ये बता सकता है तू? I'm manifesting मैं रिसेंटली एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज था क्योंकि कुछ जो मैंने गोल्स रखे थे वो Stop laughing. Why the fuck are you laughing? रिसेंटली अचीव हो गए थे अगर ये बोलता ना I'm manifesting walls background music और वो बंदा बोल देता मैं अभी होता था मैं छलांग मार देनी थी लेकिन तो यार तुझे यही सड़क मिली है करने के लिए I met a point in my career where थोड़ा सा मैं भी I'm trying to figure out which route I want to take क्योंकि अब कुछ चीज़ें seriously करनी है या नहीं करनी so अभी मैं अपनी manifestations ज़रा conjure up कर रहा हूँ कि exactly क्या करना है right now I'm at the point in my career where I'm like अच्छा whatever is happening for the good and I'm just taking on every project and every उसने भी थोड़ा सा किया bro sneak peek दिया था yeah woo बस ब्रो कर ले बस हो गया ये डन इजी है लेकिन अगर आप सोचते हो तो होता है Yeah. ब्रो ये मैं बचपन से कर रहा हूँ with everything whether it's like something related to money or your career or something you want to achieve if you can think कॉनर मैकग्रेगर ने एक फाइट के बाद इंटरव्यू में कहा था if you can visualize it and you can speak it and you can put it out into the world it will come true and I think that happens Conor McGregor is an MMA fighter I know मैंने उसकी 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री उसकी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी देखी यार बट मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती हाँ, है ये नहीं वाकई। होता कि हाँ मैंने करना है और आप बैठे हुए हो बेंच पे बाकी बैठ जाते हो ब्रो अच्छा तो जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड वी
then I've run out of what I have to like talk about. तो मुझे ये बता कि तू फार्मूला 1 का काफी बड़ा फैन है ना? बचपन से मैं फुटबॉल से पहले से फार्मूला 1 देख रहा हूँ। How is that possible? Like मैं 2001 से देख रहा हूँ। शूमैकर को देखता था तू, कौन था तेरा? Schumacher was my hero। अच्छा, तो फरारी का फैन था तू? अभी तक फरारी का फैन हूँ sadly। अच्छा, not- फरारी and United both two red teams that have been fucking up my life for the past decade and a half। Bro, शुक्र कर पाकिस्तान की तू नहीं देख रहा होता मैचेस। वो That's एक like मिनट। actually torture। I love you Pakistan cricket team। क्या क्रिकेट की बात कर रहे हैं? हाँ। डाइंग स्पोर्ट है। Oh shut up, shut up। मुश्किल से वर्ल्ड कप में टीमें पूरी होती हैं आपसे। ये मैं काट रहा क्यों हूँ। काट रहे हो? मुझे ये सही बता, बात है यार। मुझे ये बता, you also started a pod on the mic। तो like bro, मैं वो 1-2 एपिसोड सुने थे, but like क्या is there a reason you stopped? क्या, when is that coming back? क्या, I क्या would scene? love to bring it back। उसका the reason it stopped dying out because it was me, Anush and Umar Fasi। बट वो हमारे टाइमिंग्स का बहुत वो होता था कि बॉयज़ आर वर्किंग कॉर्पोरेट जॉब्स, उनका मतलब रेस होती है, फिर आपको बहुत टाइमली करना पड़ता है एंड इफ़ यू डोंट डू इट लाइक इमीडिएटली द डे आफ्टर और राइट आफ्टर द रेस तो बस फिर वो लेट हो जाता है। और शूट करने के बाद एडिट, तब ऑन द माइक वाज आल्सो लाइक थोड़ा सा बिगिनिंग स्टेजेस पे था, तो उनके पास इतनी वर्कफोर्स भी नहीं थी कि वो मतलब एक बंदा फिर हमें डेडिकेट कर देते। सो उस वक्त बस इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट आई रियली वांटेड लाइक दो I चीजें, want लाइक to see डिस्कसिंग that। यूनाइटेड एंड डिस्कसिंग फार्मूला 1 आई वांटेड या मैंने टू स्टार्ट वैसे डूइंग। ऑफ द माइक तो बोला था ये, और लाइक लेकिन ऑन द माइक बिग फैन असल में जेन्युइनली। Same। नहीं, उनको वाकई टीम अगर देख रही है, give them their flowers। हमने one of the motivations नहीं कहना चाहिए, but one of the more inspiring, उन्होंने काफी इंस्पायर किया था इन द सेंस जब वो माइकल ओवन को लाए थे। आई थिंक मेरी कमेंट अभी तक वहां पे है, कोई मैंने 19-20 फायर इमोजी भेजे थे उनको। लाइक ब्रो, आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये भी हो सकता है। लाइक इट वाज अमेजिंग ब्रो। तो लाइक और शाउट वो आउट टू ऑन द लिवरपूल माइक। फैन है यार इस्माइल। हां, उसकी तो मैं डिलीट कर रहा हूँ मतलब दुनिया चेंज हो गई थी वहां पे। हाँ ब्रो, खैर उसका ज्यादा नहीं, उसकी लिवरपूल के लिए ही वाज लाइक बैलन डोर विनर ना, नो या इट वाज लिवरपूल के लिए पर कोई टाइटल नहीं जीता था उनके साथ ना। टाइटल तो कोई नहीं जीता था। नहीं मतलब लाइक कोई कप भी नहीं जीता था। नहीं जीता था, नहीं। हाँ, तो फिर सही उसका तो यूनाइटेड तो यार, यूनाइट हम लोगों के ख्वाब पूरे करते हैं तो हम। ऑन द माइक हैड यूनाइटेड लेजेंड माइकल ओवेन ऑन। यस, जो बात है। बहुत आला यार। हाय, अच्छा एक फन फैक्ट है ज़रार के बारे में कि ये सैटरडे को सिर्फ लॉन्डो से मिलता है। इट इज फॉर द बड़ी बॉयज। पार्टियां मैंने स्टूडेंट फॉल्स ये बड़ी पार्टियां छोड़ के मैं गया हूँ और बहुत गालियां खाई हैं मैंने लोगों से, क्योंकि मेरे जो कुछ बचपन के दोस्त हैं ना, हम लोग कभी नहीं मिलते, हम सिर्फ सैटरडेज को मिलते हैं। ओके। सो सैटरडेज आर फॉर द बॉयज। और फिर Saturdays are also for like a party or a house party or whatever। Like for our group it was also like weekends पे कभी Fridays होता था, कभी Saturday होता था। तो मैं बहुत always दफा excuse मैं midway बस ना आयरिश एग्जिट मार के, आयरिश एग्जिट जो है ना इसका बस, क्योंकि मैं अगर बट को मिल लूँ ना जाने से पहले तो फिर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बट नहीं आपको जाने देता। बट कहता है तू पागल है ब्रो, अभी 11 बजे हैं, तू कैसे जा सकता है, अभी तो हमने फन करना शुरू किया है। तो फिर मैं फुल आयरिश एग्जिट मार के जाता था। दिस इज अ फैक्ट, शाउट आउट टू द 212 गैंग, लेट्स गो। यार अच्छा, मेरे जो हमने कॉन्वर्सेशन काफी इधर उधर की है, तो मेरी जो एक अदद कहानी थी वो बीच में रह गई। अब मैं चूतिया लगूंगा वो कहानी फिर से बोलते हुए। सुना यार क्या कह रहा है। एनीवेज, ये कहानी जो है ना, इट गोज ऑल द वे बैक टू के लड़के जो है ना Okay, they shouldn't be able to date. हाँ, क्योंकि वो अपने आप को फाइंड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इसने पार्टी शार्टी और मिलने शिलने की बात की है ना, तो मेरे दिमाग में है। तो a friend told me the story about someone that he sort of knows। ठीक है, तो ये बॉय मतलब शहर का नहीं है, वो लाइक नया लाहौर या कराची आया था, आई डोंट इवन नो कौन सी सिटी थी। तो उसने भी कहा हाँ यार लाहौर आया हूँ, कराची आया हूँ, बच्चियों से आज मैं बच्ची से बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो किसी लाइक जीटी शीटी पे ले गए उसे। मेरे पास भी वैसे एकदम से मुझे स्टोरी क्लिक हुई, मैं भी सुनाता हूँ। बस तू सुना इसके बाद फिर ठीक है, तो बॉय जाता है जीटी पे, ठीक है, और फिर बस शर्मा गया, साइड पे खड़ा हो गया।
फिर पता नहीं, आई थिंक कोई अल्कोहल थी वहां पे। GT प्रेफर किया गेट टुगेदर को, बड़ा कराची बॉय तू यार। शट अप कहानी खत्म हो रहे थे। एनीवेज आई थिंक वहां पे कोई अल्कोहल थी तो उसने वो भी पी ली, ठीक है। तो बॉय फील में आ गया, उसने कहा हाँ ये वो ठीक है, डांस मूव्स आने लगे, लोग उसको देखने लगे कि अच्छा डांस कर रहे हैं। अच्छा वहां पे फिर एक बड़ी फेमस मॉडल आई, ठीक है, उसने वो अपने फील में आ गया था कि हाँ यार बस ठीक है, वो अपने दिमाग में बॉलीवुड मूवी के अंदर था। स्टोरी मुझे पता है। उसने बंदी का हाथ दे दूसरा हाथ दे, उसने बंदी आई अंदर, ठीक है, उसने हाथ पकड़ा बंदी का, बंदी का क्या? उस बंदी का हाथ पकड़ा, ठीक है, बंदी जो स्टैंडिंग, उसने बंदी का हाथ पकड़ा, इस तरह करता है घुमाने के लिए और कहता है चल शहजादी नाच। और बंदी का बस हाथ जो है ना इस तरह करके वो करती है कि यार ये क्या। यार काश मैं उस दिन होता। इसलिए यार आप अपनी बेटियों को 18 साल के लड़कों से दूर रखें, ठीक है, लाइक मोइज, लाइक वहाज, लाइक जो भी है इस टाइम पे। Like even me and Musti B when we were like this young, because he we showed Bro, you. मैं फैन था तुम लोगों का वैसे, just by the way. So this is a story of manifestation and Oh, why sorry, boys should not have this going on. Me and Musti B are sitting at hotspot Lahore Defense. ठीक है, हम लोग पता नहीं क्या रैंडम बातें कर रहे थे और एकदम से in specifically these words मैंने बट को बोला, पर तू सोच यार अभी ये हॉटस्पॉट के बाहर एक काला वीगो डाला है, उसके अंदर बच्चियां भरी हुई हो, पीछे भी बच्चियां हो, ये हो। वो भी कहते हैं यार टिवानी तू क्या यार अजीब बातें कर। मैं कहती नहीं, और ये आई थिंक कोई लम्स ओलंपियाड ही चल रहा था कि हम लोग लम्स थे, फिर हम लोग करके हमने कहा चलो हॉटस्पॉट आके कुछ खा लेते हैं। मैं बैठे हुए मैं कहा नहीं यार बट बस तू सोच यार एक ब्लैक वीगो डाला है, स्पेसिफिकली मैंने कहा ब्लैक वीगो डाला है, बच्चियों से भरा हो, अंदर भी बच्चियां, पीछे भी पूरे डाले के बच्चियां। हमने कहा अच्छा हाँ ओके ये वो ब्ला ब्ला। 1 मिनट के अंदर नहीं एक बाहर काला ब्लैक वीगो डाला आया, बच्चियों से भरा हुआ, पीछे भी बच्चियां, आगे भी बच्चियां, और हम वहां पे कोई 13-14 साल के बच्चे फुल अभी लाइक पता नहीं 13-14 नहीं, थोड़े बड़े थे इससे, बड़े होंगे, 17-18 यहाँ 17-18 टाइप। हम दोनों फुल रेडी थे, यहाँ पेट भरा हुआ, लेकिन फिर से जाके काउंटर पे ब्राउनी और आइसक्रीम दो। हमने कहा मैनिफेस्टेशन भी होगी, बच्चे वाकई मैनिफेस्टेशन हुई है। वो आज तूने मैनिफेस्टेशन में उनसे बात भी की। हाँ बस दूर से बड़ा सीन था। Anyways, यार पूंडी भी क्या चीज थी जब आप छोटे थे। it was a पूंडी करने Lahore जा रहे tradition. हैं। It was a Lahore कोई नहीं tradition. पता होता था कि क्या सीन होगा, बस बाहर जा रहे हैं पूंडी करनी है। Yeah, that's the reason. अच्छा हाँ पूंडी हो गए वहाँ पे, हाँ चल चलते हैं, ठीक है ये है। बहुत आला। चल ठीक है ब्रो, अब जरा कैमरा में जाके देख, माइक के करीब हो जा और अंदलीप को बोल आई एम सॉरी अंदलीप, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो, मैं वो गोलियां खाना चाहता था। मेरी अम्मी ने मुझे रोक लिया था, उन्होंने कहा था कि तुम समझदार हो तो वो गोलियां नहीं खाओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। my heart. Mama's boy. Chal bro, you're a fucking legend. Thank you so much for coming, and I hope Jaffa is just like a small thing in your Inshallah. entire catalog, bro. और इससे बड़ी चीजें ही हो। और ब्रो बस तू टॉक्सिक किंग्स का जो है ना, मैं हुडविल को भेज रहा हूँ ये ड्रामा, तेरा कोई ना कोई होगा वहां पे, शक्ल के टॉक्सिक किंग ऑफ पाकिस्तान। Astaghfirullah. Bro, thank you so much. Thank you, Salman. And we are out.